guests who are outside the hall in the lobby, volunteers are requested to invite them in the hall so that we can proceed. Sir, please come to the stage. Renewables with the assistance of AI. Feasible. That is the main question. We can break it into two. Is decentralized power system feasible in Pakistan, number one? And whether it can be decentralized through many microgrids and renewables with the support of AI. I think if we break it into two, perhaps we can understand much better. So, ये feasibility जो है, it has got various aspects, technical aspects, financial, etc. Technical यहाँ तो expertise है, engineers हैं, financial wizards भी हैं. So might be these two are okay, we can handle it in a short time. लेकिन इसका जो तीसरा aspect है, जो शायद आपने गौर न किया हो उस पे, वो रेगुलेटरी एस्पेक्ट। पाकिस्तान का एक स्पेशल मसला ये है कि 4 प्रोविंसेस हैं, सेंटर है, कंट्रोल सेंटर का होता है। अभी भी आप देखें तो एनर्जी जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फेडरल सब्जेक्ट है, और इट विल रिमेन ए फेडरल सब्जेक्ट for the foreseeable future under the 18th Amendment, which is administered through Council of Common Interest, which is a provincial federal entity. Again, it is considered to be a federal entity. Okay, fine. अब ये जो regulatory मसला है, the provinces can develop actually under NEPRA award framework. They can develop renewable energy projects. They can handle them separately as well. They can, the distribution of electricity, control of electricity, that is handled by federal agencies. So if we want to privatize or if we want to provincialize, if we want to go to mini and microgrids, then we will be decentralizing the power. And that requires smart negotiation of constitutional, regulatory, technical and financial realities. So we are very lucky today that we have got engineer Imtiaz Baloch here with us from NEPRA. He's got 30 years experience of working with NEPRA. He's worked with BAPTA as well. Wonderful person. I've known him, I think, since 15 years at least. Very helpful, and I think he'll help us today to resolve this part of the panel discussion, the regulatory part, which is very important for us, Baloch sir. Now, I just want to, introduce you what is a centralized system. In Pakistan, it's being handled by power division. The whole of generation, transmission and distribution is the hand of power division. They control it through Islamabad. From Islamabad, just to give you an idea how big the system is, I'm showing you a single line diagram of FESCO. It has got about more than 100 grid stations, and the capacity is 3,500 MVA plus. So this is FESCO. The utility is 200 kilometers by 200 kilometers in the area. So this is a large utility with thousands of employees. So you just keep in mind that how big the thing is, and this is one DISCO. We have got 10, 12. So this is being controlled from the one office of Power Secretary, Power Division. Now, what's the mini grid?
the decentralized power system which we are looking at using renewables, mini microgrids and AI. This is a small system which could be mini grid is up to 10 megawatts. So it would consist of renewables, if it is renewables, it is wind, solar, biomass, battery energy storage system, etc. put together, midi voltage grid. So this is a technical single line diagram. But you just need to know that it's a small thing. It can be handled locally. It can be for one industry also, captive mini grids. It can be for a number of villages together. That's all possible with this. And if you see, the AI is being used all over. This is not something very new for us. We were offering this small captive power plants or grids to the industry in 2012, 2013. This was being done. We also tried once during that time period to construct a power control system. We used to call it intelligent control system. We were using it. It was an AI thing, but at that time AI was not the buzzword. So this is not something new for us. We have been doing this. So this is what it is. Just to tell you about the solar potential of Pakistan, this whole of Pakistan has got a lot of solar installation. We have, according to SIFC figures, we have 2,900 gigawatts of solar potential in Pakistan. Unfortunately, utility scale projects we have just utilized 1 gigawatt up till now. But on rooftop solar we have 4 to 5 gigawatts. Wind potential, if you see these brown areas, we have got high wind here, more than 7 meters per second, up to 12 meters per second also. In the blue areas, is shown here, the wind is between 4 meters per second to 5 meters per second. And yesterday we were discussing that we can perhaps use vertical axis small wind turbines in these areas, rural areas especially. So this potential is there. We have 400 gigawatt of potential, utilized just 2 gigawatts in utility scale projects. So this is what SIFC wanted. This is a brochure from SIFC issued on 1st September 23. They want an energy transition. That's what they have decided among themselves. They are calling the shots now. And they want 31% of renewables in 2023. They want to go to 62% by 2031. And this is what we call RE transition. We don't go into details, but we may discuss it while we are discussing things. Then there is something we should consider while having this renewable energy transition, that we should try to localize it, make it local. The reasons are very clear. We don't have any dollars, we can't import things now, we need jobs here, and we want to use indigenous resources. So I think there are no two opinions about it, that we shouldn't import fuel for making electricity. We should always try to use our local indigenous fuel. We have got gas also, somewhat a little bit, like tight gas, shale gas, everything is here. Coal, 185 billion tons of reserve coal, and huge renewable potential. So to discuss these things, especially Make in Pakistan, I must say we have got Khalid Parvez Saab here, from CEO of KPWS Consulting. He has been lately working on this Make in Pakistan issue. He has written articles on that as well. And we will hear from him how we can perhaps, help in decentralizing by making things locally.
Ali Saab has been a teacher as well. He was teaching digital electronics at that time. I think this was at that time in the 80s, most probably 70s. Okay. So I would say that if you take the electronic standard at that time, so kilo flops were the maximum range. Flops is floating operations per second. So 1 kilo flops. But these days, for AI, we require 1 teraflops. So you can see the difference. At that time, electronics was, as something that people used to say, it is the thing. But now AI is the thing, and Ali Saab has been working with AI as well. And for renewables, to discuss on renewables, we have got Mahfouz Qazi Saab here from Sindh Energy Department. He is the director. Sindh Energy Department is going for a utility scale 350 megawatt wind solar hybrid project. We will see how can we get it done. And then Mahfouz Qazi Saab is also project director for Sindh Solar Energy Project, which includes the utility scale solar project, rooftop solar, and solar home systems for rural areas. So he's there. So we have this expertise. And then we have Saqib Zaki Saab from Rayon. And he is doing mini grids these days. They have signed agreement, Rayon signed agreements on mini grids using wind, solar, and BESS. So the expertise is there. And I will call our experts one by one to the stage. First of all, I would like to request Engineer Imtiaz Baluch to please come to the stage, join us here. Then Engineer Anil Parvez Saab, please come to the stage. Engineer Mahfouz Qazi Saab, please come to the stage, and Engineer Saqib as well. So we'll do like this, that just to get an impression from the audience. The language could be any language, okay? Urdu, Angrezi, जो भी आप चाहें बोल लें. So audience का impression देने के लिए आगे जाऊँगा पिक्चर लेके. मैं चाहूँगा कि जो टॉपिक है हमारा, इसके बारे में जो आपका क्या ख्याल है पहले? Is decentralization power system feasible? हाथ खड़े कर दें अगर आप समझते हैं it's feasible. So I think जो समझते हैं कि not feasible है वो हाथ खड़े कर दें. So there are people that are thinking it's not feasible. अच्छा, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक है ना, वो उसको हम बाद में आपसे पूछ लेंगे जब डिस्कशन हो जाएगी कि वो थ्रू मिनी में माइक्रो ग्रिड्स होना चाहिए या हो सकता है आपकी तरफ से कोई नए आइडियाज भी हमें मिल जाएं. लेकिन इस वक्त फिलहाल टॉपिक ये है, तो मेजॉरिटी थिंक्स कि इट इज फिजिबल. तो नाउ टेक्निकली और फाइनेंशियली तो आई थिंक we will discuss these things. और हमारे पिछले 2 दिनों में जो पेपर्स पढ़े गए हैं यहाँ, उन्होंने यही साबित करने की कोशिश की है कि रिन्यूएबल्स जो है इस वक्त बहुत फिजिबल है, हमारे पास पोटेंशियल भी है. लेकिन जो हमारा रेगुलेटरी इशू है इतना स्लो चलता है, वो हम पहले डिस्कस कर लें और साथियाँ हैं इनसे पूछ लें कि उनके ख्याल में कोई हाँ we want to start with वाइड मानी. difficult question. difficult नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं. एक तो पर्सपेक्टिव को बिल्कुल सेट राइट कर लें कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है बिल्कुल भी ओपन टू दैट. मेरे ख्याल में वो अपने मुंह मियाँ में जो करने वाली बात है, इतना मेरे ख्याल में वहाँ कोशिश करते हैं. ठीक है, हमारी लिमिटेशन दुकान भी जो है कहना चाहिए कि 100% तो कोई एफिशिएंसी किसी की भी नहीं होती. जो ह्यूमन लिमिटेशन और ऑर्गेनाइजेशनल लिमिटेशन
اس ملک کے فریم ورک میں رہتے ہوئے ہوتی ہیں وہ تو ایسوسیٹڈ ہمارے ساتھ بھی ہیں. اور میں ہمیشہ جہاں بھی جاتا ہوں یہ میں اپنا پرسپیکٹو بتا رہا ہوں, اتھارٹی کا آبویسلی نہیں ہے, جو ایک پروفیشنل کا ہونا چاہیے. میرا ہمیشہ سے یہ بالکل ایمان کی حد تک ہے کہ ریگولیٹر کے کوئی دو دماغ نہیں ہو, یہ اسٹیک ہولڈر ہیں جو اس کو وائز بناتے ہیں. آپ بالکل اسی طرح تنقید کریں, ہمارے جیسے وہ کوڑے پڑے تو تبھی ہم ٹھیک رہتے ہیں, یہ کوئی ہماری ویسے نیچر میں بھی ہے ایز اے سوسائٹی. تو کوئی وہ یہ نہیں ہے کہ ریگولیٹر میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی اور ذمہ ہے ہر چیز سے. جہاں تک بات ہے اس کی, جیسے میں سمجھتا ہوں کچھ چیزوں میں جو ہے ہم ذرا جذباتیت میں آ جاتے ہیں. ان کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس وقت ہمیں یہ ڈی سینٹرلائز چاہیے یا نہیں چاہیے. اس وقت ہمارا مسئلہ اس کیپیسٹی کا ہے, اور وہ جو ہم نے 70 ایئر میں جو انفراسٹرکچر اس اسٹیٹ میں کھڑا کر لیا ہے اس کا جو سرٹن انرشیا ہے وہ ہمیں کیسے اوور کم کرنا ہے. جہاں تک اس کی بات ہے, آج آپ ہمارے پاس دیکھ لیں تقریباً جو ہے 38,000 کی تو انسٹال کیپیسٹی ہے. وہ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ سیزنز میں اس کی ڈفرینٹ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. بلکہ اگر 8,000 ہمارے پاس ہائیڈل کا ہے تو وہ اس سیزن میں شاید ہمارے پاس 2,000 سے بھی زیادہ نہ, جو ہمارے پاس پانی کی سچویشن ہے. پھر جو ہمارے امپورٹنٹ کول پلانٹس ہیں یا RLNG کے پلانٹس ہیں ان کی اپنی لمیٹیشن ہے. میں تو ویسے بھی اس بات پہ بڑا کنوینس ہوں کہ جو ہے تھرمل پلانٹ اسی طرح ہے کہ آپ نے ایک چولہا رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک کیتلی ہے پانی کی جس میں آپ چائے بنانا چاہ رہے ہیں, اور آپ کے پاس فیول لکڑی یا کوئی اور چیز نہیں ہے, آپ اپنے جو ہے وہ نوٹ اس میں جھونک رہے ہیں. تو بالکل اسی طرح ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے وہ ایک پاور سسٹم پلاننگ کا جو اصل مسئلہ جو ہمارے ساتھ رہا ہے وہ ایسے بھی ہے, ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. اب ایک ڈیسیجن اگر میں نے آج غلط لے لیا تو وہ اگلے 25 سے 30 سال مجھے بھگتنا ہے. 3 نسلیں اس میں یا 2 نسلیں تو ضرور چلی جائیں. جہاں تک اب میرے خیال میں پریمبل تو ہو گیا, اب میں آتا ہوں ریگولیٹری فریم ورک پہ جو شاید آج کا سب سے ہاٹ ایشو ہے. 97 میں جب نیپرا کا ایکٹ آتا ہے, اور جو بلکہ ہم اس سے تھوڑا سا اور پیچھے چلتے ہیں کہ 1958 تک تو ہمارے پاس بالکل جو تھا پرائر ٹو واٹر وہ چھوٹی چھوٹی لوکل ڈسٹریبیوشن کمپنیز تھیں, یا ایک کے الیکٹرک تھا اس میں KESC جو ہے جس کے پاس تھوڑا سا سسٹم بڑا تھا. ادروائز تو یہ بالکل ٹوٹل انسٹال کیپیسٹی جو تھی وہ ہماری ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کی تقریباً 150 میگا واٹ کی قریب تھی, اور اس میں بھی زیادہ تھا. یہ جو پرانے مالکنڈ کی سائٹ پہ پروجیکٹس تھے کہ درگئی مالکنڈ, اور یہ یہاں ایک چھوٹا سا کلسٹر تھا جو ہائیڈل کا, باقی سب جو تھی وہ لوکل ڈسٹریبیوشن کمپنیز تھیں. اور یہ بھی کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں ہے, جب ڈسٹریبیوشن پاور سسٹم کا آپ ریگولیشن دیکھیں تو وہ اسی طرح ہے. اچھا وہ کیوں اس طرح تھا؟ ظاہر ہے حالانکہ اس وقت بھی ڈیزل جنریٹنگ سیٹس تھے, اور تو کوئی ہمارے پاس اس وقت کوئی گیس تھی, گیس ٹربائن بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. اکانومی, فائنینشیل وائبلٹی, اور کہ بھائی اس کو وہیں آپ جو ہے لوکلی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, وہ ایک لحاظ سے اس وقت کا ڈی سینٹرلائز سسٹم تھا. پھر 1958 میں واپڈا ایکٹ آتا ہے. وہ واپڈا ایکٹ کیوں ضروری ہوا؟ ہم اس وقت ایک انٹیگریٹڈ یوٹیلیٹی کے طور پر ورک کر رہے تھے, اور ہمارے پاس واٹر کے ریسورسز اور وہ تھا, اور 60s میں ہی ہم نے وہ جو کل یونیلیٹرلی اس نے ٹرمینیٹ کیا ہے انڈس بیسن واٹر ٹریٹی. انڈس بیسن واٹر ٹریٹی کیا تھا؟ اس نے کہا جی کہ ٹھیک ہے 3 ریورز آپ استعمال کریں جو ایسٹرن ہے, ویسٹرن آپ استعمال کریں پاکستان, اور یہ ہم آپ کو کر دیتے ہیں کہ جو جہاں سے پانی کی شارٹیج ہوگی ہم آپ کو لنک کینال اسپانسر کر دیتے ہیں, وہ آپ لنک کینال سے ڈائیورٹ کر لیں جہاں سرپلس پانی ہوگا, اور آپ کو ہم جی 2 ریزروائر دے دیتے ہیں. یہ اس وقت کا تربیلا اور منگلہ کی
जो थी, अच्छा ये बन गए। अब लोड की ग्रोथ कहाँ है? लोड की ग्रोथ हमारी अगर आप देखें तो वो सेंटर ऑफ पंजाब या नॉर्थ ऑफ द कंट्री है, ये अप टू, या अगर हम पिंडी से आगे चले तो ये वो एरिया जहाँ लोड सेंटर है। लोड सेंटर अब आप थोड़ा सा ये सारा हमारे ध्यान में होना चाहिए कि ये किस तरह उसको सिस्टम प्लानिंग या जो प्लानर है वो उसको किस तरह देगा। इसके बाद हमने जो है कुछ गैस के प्लांट्स लगाए, क्योंकि जो वाटर का रिसोर्स था वो जाहिर है इतना लंबा फिर भी नहीं चलता। जब आप जो है अक्टूबर में आते थे या नवंबर में तो पानी खत्म हो जाता था। लकीली वी हैड गैस एट दैट टाइम जो कि इंडिजिनस थी और इन अबंडेंस थी, तो हमने कुछ जो है वो थर्मल पावर प्लांट लगाए। ये हमने अपने सिस्टम को थोड़ा ऑपरेट किया। अब ये वो लेगेसी है सेंट्रल ग्रिड की, और जो आज हमने 70 साल में डेवलप की है। उस वक्त के जो प्लानर थे वो भी कोई इतने जैसे कहते थे वो कोई बेवकूफ़ या वो नहीं थे। बात तो रिसोर्स की है ना, रिसोर्स कहाँ अवेलेबल है। ये तो अब आके इवन जो है इरफान साहब भी इस बात को सेकंड करेंगे कि हमने जो है 2007 या 9 में वेंट के फर्स्ट जो टैरिफ दिए वो तकरीबन फर्स्ट अपफ्रंट टैरिफ हमने दिए जिस पे कोई प्लांट नहीं लगा, वो गालिबन 9.5 है। अच्छा फिर जो है फिर हमने कास्ट प्लस पे जो टैरिफ दिया वो पहला जुल्लू का था या एफएफसी का, ये बस आगे पीछे ही थे। ये 13-14 के दरमियान 13-14 के वो मतलब है आप अंदाज़ा लगा रहे इस दौरान वो उनकी क्या सारी चीज़ें वो डॉलर इंडेक्स पे, क्योंकि हमारा लोकल बेस ही नहीं है। लेकिन कंपैरिजन तो आसान होता है और कंपैरिजन करना भी चाहिए, लेकिन कंपैरिजन के साथ साथ जो हमने जो काम नहीं किए उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। आज हम सारे इंजीनियर इस रूम में हैं मैक्सिमम, हमने इस मुल्क को इंडिजिनाइजेशन में क्या दिया? फ्रैंकली हमने इसको इंडिजिनाइज करने की तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं दी। बात भले दुश्मन की भी हो, अगर अच्छी हो तो उसको रेफर करने में कोई शर्म नहीं महसूस करना चाहिए। आप अपने पड़ोसी की मिसाल देख लें, भारत इंडस्ट्रीज जनाब, ये इसका जो बेंगलोर का उनका जो है इसका एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स देख लें। अब ये बातें तो फिर वही बात है कि वो माजी में रोते रहना। मतलब है जब उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इनकी जो एयरफोर्स है वो ज़्यादातर रशियन जो उनके साथ था, तो ये सारे उनके मिग सीरीज के होते थे। फर्स्ट टाइम इन्होंने जैगुआर लिया ब्रिटिश से, मेरे ख्याल में एक स्क्वाड्रन जो था वो उन्होंने लिया एज वेल जैसे होता है। उसके बाद सारे का सारा उन्होंने वहाँ इंडिजिनाइज किया। तो दैट्स व्हाई दिस इज हाउ नेशंस आर बिल्ट। तो अब मैं आता हूँ प्योर रेगुलेटरी एस्पेक्ट की तरफ। जहाँ तक रेगुलेटरी रेजीम की बात है, ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। 97 का जब एक्ट आया जो हमें पार्लियामेंट ने दिया, उसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये तीनों लाइसेंस्ड एक्टिविटी थी। और जो था इसका स्पेशली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक मोनोपोली थी, एक्सक्लूसिविटी का डोमेन में थी। ये तकरीबन 22 तक चला यही सिस्टम। हमने जो है 2002-01 में ये सारे लाइसेंस दिए जो इरफान साहब ने वहाँ पॉइंट आउट भी किया, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के IS को, लेस को। ये इस दौरान रेगुलेटर ने क्या सीखा या लेजिस्लेटर ने क्या सीखा? लेजिस्लेटर और रेगुलेटर ने ये सीखा कि उस एक्सक्लूसिविटी को 2018 का जब एक्ट आता है तो सबसे पहले फंडामेंटल चेंज ये आई है कि वो एक्सक्लूसिविटी अब इज नो मोर देयर। एनीबॉडी कैन नाउ कंस्ट्रक्ट लेड ट्रांसमिशन लाइन। और जो इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेज हैं वो नॉन एक्सक्लूसिव इन नेचर है। तो जो फंडामेंटल है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या यूटिलिटीज़ का एक फंडामेंटल ऑब्जेक्ट होता है कि ये मेरा एक्सक्लूसिव डोमेन है
یا میری ایکسکلوسیوٹی ہے وہ از نو مور دیئر. اینی باڈی کین, اینی کوآپریٹو, اینی پرسن جو بھی ہے وہ اب یہ کام کر سکتے ہیں. پھر 2015 میں ہم نے, وہ اگر اس سے لنک نہیں ہے لیکن بہرحال میں اس کو تھوڑا سا کرنے کی کوشش کرتا ہوں, 2015 میں ہم نے نیٹ میٹرنگ کی ریگولیشن دی. حالانکہ اس وقت بھی لوگ کمفرٹیبل نہیں تھے, اور اب تو واقعی جس طرح کی پرولیفریشن ہو گئی ہے اس کی, اس میں بڑی فنڈامنٹل چینجز کی ضرورت ہے. وہ بھی ایک جو تھا ہم نے انیشیٹو لیا اور تقریباً 4000 کے قریب ہم نیٹ میٹرنگ. چلے صاحب ہم اس پہ بعد میں آئیں گے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, نیٹ میٹرنگ اور تو میں ابھی اسی پہ آ رہا ہوں, اسی پہ آ رہا ہوں, اسی کے ساتھ ایک اور راؤنڈ لیں گے, ایک اور راؤنڈ لیں گے تو اس پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرے جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. شیور. ریگولیٹری فریم ورک پہ آپ بھی چاہیں ہم لوگ اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں. ہمارا یہ پروسیس ہوگا کہ پہلے ہمارے جو پینلسٹ ہیں یہ کچھ اپنے اس بارے میں اظہار خیال کریں گے, اور پھر اس کے بعد ہم آڈینس کی پارٹیسپیشن چاہیں گے. پھر وی کین کم بیک ٹو دا پینلسٹ اینڈ دین دس ول گو لائک دس سو دیٹ دا آڈینس پارٹیسپیشن از دیئر ایز ویل. تو ابھی امتیاز بلوچ صاحب نے کہا کہ well they are open to everything, اور خاص طور پہ جو چینج نیپرا از اوپن ٹو چینج, یہ کرتے بھی رہتے ہیں چیزیں, اور ہماری ضروریات کے حساب سے اپنے نیپرا ریگولیشنز اور پالیسیز بناتی ہے. نیشنل الیکٹریسٹی پالیسی ہے, ARE پالیسی 2019 ہے, اس کے علاوہ گرڈ کوڈ 2023 ہے. اس میں اختلاف ہم سب کو ہو سکتا ہے, لیکن نیپرا کا ایک ایفرٹ ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے. لیکن ان کا کہنا ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو ایشوز ہمارے ہیں, ایک تو ہمارے پاس اتنے پاور پلانٹ ہیں, سرپلس الیکٹریسٹی ہے, لانگ ٹرم ہم نے کانٹریکٹس کر لیے ہیں, اور کچھ چیزیں لیگیسی جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ لیگیسی سے بھی ہوتی آ رہی, پرانی ہیں, جن کے ایشوز ہیں. میں خالد پرویز صاحب سے اس بارے میں پتہ کرنا چاہوں گا, خالد صاحب, کہ یہ جو ہماری سرپلس کیپیسٹی ہے یہ تو موجود ہے اور رہے گی, کیونکہ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں. امتیاز صاحب کی بات تو صحیح ہے اس بارے میں, لیکن ہمیں یہ رینیوبلس بھی چاہیے ہیں. ہم تیل امپورٹ نہیں کر سکتے, بہت مہنگا پڑتا ہے ہمیں, اور کلائمیٹ چینج کے بھی ایشوز ہیں. تو اس کیپیسٹی کے ہوتے ہوئے آپ کیا کیسے ریکمینڈ کریں گے کہ ہم یہ پرابلمس اپنے جو ہیں افورڈیبلٹی کے, ریلائبلٹی کے, یہ سالو کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ہم انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ بہترین قوم ہمیشہ ایک مسئلے کا شکار آپ چاہتے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ میری ذاتی رائے ہے, ذاتی کمنٹس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت قوم ہمیشہ ایک مسئلے کا شکار ہوتے ہیں, اور شاید اس کی کچھ وجہ یہ ہے کہ ہم پوری طریقے سے ہوم ورک نہیں کر پاتے, ہم اس میں لیک کرتے ہیں. آپ بہت سارے پالیسی ایشوز دیکھیں گے پاور سیکٹر سے ریلیٹڈ, دوسرے ایشوز دوسرے سیکٹر سے ریلیٹڈ, انرجی سے ریلیٹڈ. ہم نے ایک کام شروع کیا, اس کو تھوڑے دنوں بعد طے کر دیا اس کو. کیوں بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت ہم نے وہ کام شروع کیا تھا تو اس وقت اس کام کے کرنے کا جو ہوم ورک تھا, جو ضروریات تھی, اس طرف ہماری توجہ نہیں گئی. ہم نے CNG کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے کھول دیا, پروموٹ کیا, دبا کے پروموٹ کیا, اور بڑے ویریڈ قسم کے اس میں ایسٹیمیٹس ہیں کہ پاکستان کی اب کتنا بڑا زر مبادلہ اس پورے انفراسٹرکچر میں اس میں انویسٹ ہوا اور وہ اس کے بعد ضائع ہو گیا. بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں جی گیس نہیں ہے ہمارے پاس. یہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا.
क्या कुछ पता नहीं था कि आपके पास गैस नहीं होगी, इस वक्त तक होगी, इतनी रिजर्व है, ये है वो है। Why we didn't do our homework? तो हमारे साथ प्रॉब्लम जो है ये है कि हम होमवर्क नहीं करते, हम वेव्स पे चलते हैं। कौन चलाता है हमको वेव्स पे, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, सबको पता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो रेगुलेटरी मैटर्स हैं, उनके कह रहा हूँ, चाहे वो हेल्थ पॉलिसी हो, चाहे हमारी हाउसिंग पॉलिसी हो, चाहे हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का पोर्टफोलियो हो, एक एनीथिंग। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने एनर्जी कंजर्वेशन का एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया, बड़ा जबरदस्त डॉक्यूमेंट। उसमें कहा कि वो उसको इख्तियार होगा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को कि वो कैंटनमेंट्स पे भी जा सकेगा, प्रेसिडेंट हाउस में भी जाएगा, प्राइम मिनिस्टर के हाउस में भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, वहाँ भी जाएगा, पूरा का पूरा उसका जो वो है एम्बिट, सब कुछ उसको उस पर शामिल होगा। Is that doable? Are we making policies? Are we making documentation which are really doable? I seriously doubt that. ये जो बनाने वाले होते हैं उनको पता होता है कि नहीं यार ये सारा 2 दिन पहले 4 दिन पहले मेरे पास आता है कि आप आ जाइए, इसमें एक मीटिंग हो रही है, उसके हवाले से एनर्जी के हवाले से पार्टिसिपेट। कोई मेरे पास उसका एजेंडा नहीं है, सिर्फ एक मीटिंग को उस नोटिस आया। Is this the way of handling national issues? Same thing happened, and Nabil Agrawan Sahib is a witness to that. The way national electronics policy का जो सिलसिला शुरू किया, it didn't materialize. I think still it is not materialized. I was a member of that federal ministry की committee थी, उसका मैं member था। बाद में मैं उससे withdraw किया था because of my personal reasons। तो मुख्तसरन जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि I think whosoever are the real brains and work hands behind developing the policies, चाहे गवर्नमेंट के इदारे हो या पार्लियामेंट हो या जो हो, उनको खुदारा हमारा एक कहना है बस ये होना चाहिए कि थिंक इन द लॉन्गर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। आप एक आज फैसला करते हैं, आप जाते हैं सीपेक के तहत पावर प्लांट्स की बात करने के लिए चाइना, अब चाइना जाके कहते हैं कि हमें 24,000 मेगावाट चाहिए। चाइनीज आपसे पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, आपको खरीदते हैं, आपके पेट में क्या दर्द हो गया, 24,000 मेगावाट आपको हो गया, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? एंड यू आर अनेबल टू see that justification. प्राइम मिनिस्टर के साथ डेलीगेट जा रहा है और उसमें जो भी हजरात हो सकते हैं आप अंदाजा कर सकते हैं, पावर मिनिस्ट्री भी हो सकते हैं, उसके डेलीगेट हिस्सा है। जब चाइनीज उनसे पूछते हैं कि व्हाई यू नीड 24,000 मेगावाट, तो जवाब ये होता है कि जी सीपेक की वजह से जो पाकिस्तान में शानदार मुस्तकबिल आ रहा है, उसके नज़रिए उसके नतीजे में हम समझते हैं कि पाकिस्तान में इतनी ज़बरदस्त इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी कि हमारी 24,000 मेगावाट की शायद वो कम पड़ेगा। ये सूरत हाल है। इस हवाले से मैं एक क्लोज करता हूँ ये कहते हुए कि देखिए आप सब ने वोट किया, आप सब ने कहा decentralized power system is the future. I fully support that. इसके बगैर काम नहीं चलेगा। But are we mentally ready? Are our regulators ready for that? हमारा जो सिस्टम है गवर्नेंस का, पूरा गवर्नेंस का सिस्टम, वो जितना स्लो चलता है वो आपको अंदाजा है कि एक पॉलिसी बनने में कितना टाइम लगता है वो आपको अंदाजा है। एक बनी हुई पॉलिसी को तब्दील करना कितना मुश्किल होगा। We love status quo. We are not tailored to take bold steps. ये तकरीरों में बड़ा अच्छा लगता है कि हम बोल्ड स्टेप्स ले लेंगे, इनिशिएटिव्स ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे। तकरीरों के बाद है बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने फरमाया कि हमारे यहाँ ठीक है पॉलिसीज का मसला है, हो जाती हैं, गैस डिप्लीट हो रही थी, हमें पता नहीं था,
2004 में IEEE की फंक्शन में हमारे एक मेंबर MD श्री सदन थे मोहम्मद बशीर अहमद, उन्होंने यहाँ स्टेज पे इनॉग्रल में कीनोट स्पीच दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसका कोई एनर्जी सॉवरेनिटी प्लान नहीं है और गैस जो है 2010 के बाद खत्म हो जाएगी और हमें कुछ पता नहीं है बाद में क्या करना। अगले दिन अच्छा डॉन में बड़ी छपी खबर, अगले दिन जमाली साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको कराची के एयरपोर्ट में मिले। जर्नलिस्टों ने जमाली साहब को घेरा हुआ था कि आप किस किस्म का मुल्क चला रहे हैं जिसका कोई एनर्जी प्लान ही नहीं है। उनको फिर मुनव्वर बशीर अहमद नजर आ गए, वहीं डॉन पकड़ा हुआ था उन्होंने हाथ में। मुनव्वर बशीर अहमद ने मुझे खुद बताया कि मिनिस्टर साहब साइड पे ले गए मुझे, प्राइम मिनिस्टर साहब, और बहुत मेरी खुदाई की और उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त? मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। कहते हैं सीधा जनरल मुशर्रफ के पास पहुँचो और अकरम शेख, डॉक्टर अकरम शेख जो थे हमारे साथ कल IEEE चीफ गेस्ट थे, उनको भी लेके आए। हम उसी वक्त वहाँ पहुँच गए और वहाँ जनरल साहब ने ये डिसाइड किया तुमने ये बात करी दी है, तुम दोनों बंदे बैठ के एनर्जी प्लान बना पाकिस्तान का। और वो IGCEP से आने से पहले जो भी एनर्जी प्लान था वो इन दो बंदों ने 2 महीने बनाया। तो वो 2 महीने का बना हुआ प्लान 4-5 पेजेस थे, उसी पे हम चलते रहे 15 साल, फिर IGCEP आया। तो ये हमारी डिस्कशन से भी फायदे हो जाते हैं। अब आपने रिन्यूएबल्स के बारे में ये कहा कि जी ऑफ कोर्स वी शुड गो फॉर दोस रिन्यूएबल्स, लेकिन आर वी रेडी? हम क्या जानबूझ सोच समझ के जाएंगे उधर? हम कभी सोच समझ के जाते नहीं, अक्सर ये होता है। हम वी आर नॉट पीपल बाय चॉइस, हम तो फोर्स पे एक्ट करते हैं। इस वक्त वी आर बीइंग फोर्स्ड। हमारे पास यहाँ साकिब जरी साहब बैठे हुए हैं, he has signed 2-3 कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स जिसमें इंडस्ट्री जो है वो कैप्टिव मिनी ग्रिड्स की तरफ जा रही है यूजिंग विंड, सोलर एंड बेस, क्योंकि जो यूटिलिटी है वो अनअफोर्डेबल और अनरिलायबल हो गई है किसी वजह। नाउ वी आर बीइंग फोर्स्ड टू गो देयर। गैस बंद कर दी गई है इंडस्ट्री की, उनसे कहा है कि यूटिलिटी कनेक्शन ले लो। नए कनेक्शन के चार्जेस उन्होंने इतने बढ़ा दिए हैं कि पॉसिबली सबसे आसान ये है कि आप सेकेंड हैंड विंड टर्बाइंस लाएँ और उससे साथ सोलर और बेस लगाएं और चले जाएं। तो ग्रिड डिफेक्शन जो है वो नज़र आ रही है इस वक्त, खामोशी से हो रही है। ये सूरत हाल क्या है? साकिब साहब ज़रा इस बारे में बात करें और जो दूसरे टॉपिक्स हमने छेड़े हैं उसमें भी 10-5 मिनट्स perhaps. Sure. Assalamu alaikum everyone. First of all, thank you very much for giving me this opportunity to be a part of panel which discusses a lot of senior and honorable, knowledgeable guys like you, like all Faris Sahab, Mehboob Sahab, Imtiaz Sahab. Mike जरा Yeah. Is it better now? Yeah. Okay, जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं खालिद साहब की बात को पहले कैरी करते हुए आगे चलना चाहूँगा। और जब भी जो बात कर रहे थे कि उन्होंने बात शुरू की थी कि हम एज ए नेशन हमारी कोशिश ये होती है कि एक तरीके से जो जहाँ चल रहा है भेड़ चाल में चलती है। एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव विटनेस्ड सिंस आवर रिसेप्शन, जब से हमारी इंडिपेंडेंस हुई है। एनर्जी में भी यही हाल हुआ। और अगर देखें तो 2000s में जो गैस का आया था कि बहुत सारे गैस जनरेटर्स फिर इस तरह से इम्पोर्ट हुए पाकिस्तान में और इस तरह से लगे हैं, डिप्लॉय हुए, और उस वक्त डिप्लॉय होने के अलावा अपरेंटली कोई ऑप्शन भी नहीं था हमारे पास, इसलिए कि गैस के रिसोर्सेज थी। ये अलग बात है कि हमने जो है वो CNG पंप्स स्टार्ट कर दिए, व्हीकल्स को रोड पे हमने गैस बर्न करना शुरू कर दी, जिससे हमारे रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से क्विकली डिप्लीट हुए। फास्ट फॉरवर्ड जो रिन्यूएबल की हम बात कर रहे हैं तो रिन्यूएबल भी वी आर फोर्स्ड टू एडॉप्ट, और ये भी जो है वो बहुत ही आप समझ लें भेड़ चाल में हुआ है। वो क्यों हुआ है? वो इसलिए हुआ है कि कैपेसिटी हम सबको पता है, ग्रिड की कैपेसिटी इज वे हायर देन द पीक समर डिमांड। साथ में जो है वो रिन्यूएबल की प्राइसेस ऑन दी अदर हैंड वो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे, उसका कॉस्ट कर्व जो है वो अब बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया। तो रिन्यूएबल का एक यूनिट, अगर मैं सोलर की बात करूं जो कि आज जो है वो
मैक्सिमम 10 या 12 रुपए का पड़ता है, एज कम्पेयर टू ग्रिड का यूनिट जो कि अभी आफ्टर द रिडक्शन इन टैरिफ्स वो कोई 34-35 रुपए का है। प्लस गैस पे अभी तक जो हुआ है, गैस की लोड शेडिंग पिछले 2-3 सालों में, उसके बाद फिर गैस पे लेवी सप्लाई हो गई हैं, तो वो भी जो है वो 35 प्लस ही है। तो रिन्यूएबल अब से कोई 10 साल पहले शायद इसी लेवल पर था, बिकॉज इट वॉज एक्सपेंसिव, इम्पोर्ट वॉज एक्सपेंसिव। जैसे जैसे जो है वो कॉस्ट कर्व इसका नीचे आने लगा, एवरीबडी स्टार्टेड अडॉप्टिंग रिन्यूएबल। फर्स्ट फेज में क्या हुआ? फर्स्ट फेज में ये हुआ कि जो जितना रिन्यूएबल अपने सिस्टम में कंज्यूम कर सकता था उन्होंने कंज्यूम किया। और आपको पता है कि रिन्यूएबल इज इंटरमिटेंट, ये दिन के टाइम है, क्लाउड कवर में नहीं है, सोलर की बात करें, विंड भी जो है इंटरमिटेंट है, और ये भी जो है वो उस पर भी स्पाइस एंड टिप्स आते हैं। तो एक सर्टेन पोर्शन में ही रिन्यूएबल को एज अ फर्स्ट स्टेज जो है वो डिप्लॉय किया जा सकता है, which the industry did, and also अगर मैं इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बात करूँगा, रेजिडेंशियल डोमेस्टिक में भी यही हुआ है। तो जब ये एक पूरी लहर चल रही थी, तो जब एक आर्बिट्राज बीच में जो है ना, एक ग्रिड से एक डिफ्लेक्शन, देखें पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कुछ ना कुछ जो है वो डिमांड हमारी टेक्निकली एंड नंबर्स में बढ़नी चाहिए, लेकिन ग्रिड पे डिमांड या तो स्टेबल रही और अब वो डिफ्लेक्शन की स्टेज पे जा रहे हैं और वो डिक्लाइन हो गई है। उसका मेन रीज़न क्या है कि ग्रिड पे ड्यू टू कैपेसिटी चार्जेस एक प्राइस बढ़ती जा रही है और रिन्यूएबल की प्राइस कॉस्ट नीचे चली जा रही है। तो एक आर्बिट्राज बिल्ड हो रहा है। उस आर्बिट्राज को लेवरेज करने के लिए इंडस्ट्रीज और whosoever has prepared renewable, which was a right decision on their part। हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो भी और से वो राइटफुली सपोर्ट करती हैं इसको, लेकिन इस पूरे ट्रांजिशन में हुआ क्या है? हुआ ये कि ग्रिड जो है वो जो हमारे यूटिलिटी और पावर जनरेशन की जो साइड है वो फिर एक तरीके से, क्योंकि महंगे होने की वजह से, कंजम्पशन या डिमांड कम होने की वजह से वो महंगे से महंगा होता चला गया, और उसकी जो है वो अब हमें यूटिलाइजेशन काइंड ऑफ वो नजर नहीं आता। अब एक चीज़ है जिसपे दो डायमेंशन इसकी निकलती हैं। एक तो ऑप्शन रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हम जो है वो किसी तरीके से रिन्यूएबल की इस स्पीड को, इस पेस को कम करें। दूसरा जो है वो ये कि इस स्पीड को, इस पेस को कम करने के बजाय हम रिन्यूएबल को इम्प्रेस करें, उसको इंटीग्रेट करें। उसके डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, जो कि हमें पता है कि अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, हमें पता है कि जिस तरह से हमारा ट्रांसमिशन नेटवर्क है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो उसकी कैपेसिटी और जनरेशन की कैपेसिटी में कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर हमें किसी एंड यूज़र तक एनर्जी पहुंचानी है, डिमांड कंज्यूम करवानी है, तो उसके लिए हमें ना सिर्फ ये है कि जनरेट करनी है, जनरेशन तो हमारे पास बहुत है, लेकिन पीछे जो है वो हमारे पास ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अब उस इन्वेस्टमेंट के लिए अलग बजट है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट जो है वो फर्दर हाई होती चली जाती है। तो एक इसका सोल्यूशन तो ये है, एक साइड पे सोल्यूशन तो ये है कि अब जो है वो किसी तरीके से जहाँ पे सोर्स है वहाँ पे उसकी यूटिलाइजेशन देखें, और उसका एक मेथड ये है कि यूटिलाइजेशन में हम इंडस्ट्रीज को वहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश करें। जो ग्रिड और यूटिलिटी की बात करें, पर्टिकुलरली आजकल जो एक पॉलिसी में भी अब आ रहा है, ऐसा ये डिस्कशंस चल रहे हैं कि हम डाटा सेंटर्स बिल्ड करें उन एरियाज में जहाँ पे जनरेशन हो रही है, और वहाँ पे हम उसको रिन्यूएबल के साथ इंटीग्रेट करें। तो ये तो हो गई रेगुलेटरी बात। दूसरा जो इरफान साहब आपका जो सवाल है कि इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट्स भी किए, हमने साइन किए, राइटफुली यस, एंड वी सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। हमें अभी की सिचुएशन में एक बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल दिखता है इसमें, और वो क्यों दिखता है? क्योंकि जैसे मैंने पहली बात की, एक आर्बिट्राज है, उसके अलावा रिन्यूएबल सस्ते होने के साथ साथ उसमें जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, वो टेक्नोलॉजी इस रिन्यूएबल की इंटरमिटेंसी को कम तो नहीं करेगी, लेकिन मैनेज करने के बहुत सारे वेज एंड मीन्स हमें दे रही है। और जैसे जैसे ये वेज एंड मीन्स हम रियलाइज करते जा रहे हैं, इसकी फिजिबिलिटी, इसकी पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बेहतर होती चली जा रही है। अब उस पर हम डिस्कस करेंगे AIB टाइप थिंग गोइंग फॉरवर्ड। सो फॉर नाउ थैंक यू सो मच। आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि
इंडस्ट्री जो है वो कैप्टिव ग्रिड्स की तरफ, मिनी ग्रिड्स की तरफ जा रही है। अब हम खालिद साहब के पास आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने काफ़ी अरसे से इस चीज़ों की कोशिश कर रही है। रेगुलेटरी का जहाँ तक ताल्लुक है, सेफ्रा भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बनाए, सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। और अगर यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स को देखें तो अभी एक MOU साइन किया है सिंध गवर्नमेंट ने मिनियन कॉर्पोरेशन के साथ चाइना में, और 350 मेगावाट बल्कि 425 मेगावाट ग्रिड हाइब्रिड सोलर उस पर काम हो रहा है। And this energy will be used only in Sindh under B2B program, business to business. So this is also something moving away from center. Okay, provincial aspect उसका देखा जा रहा है। तो सिंध गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में काफ़ी उनकी एडवांस अप्रोच रही है प्रोविंसेस पे कि रिन्यूएबल्स ने बहुत सपोर्ट प्रोजेक्ट्स को सिंध से मिला, खासतौर पे विंड पावर प्रोजेक्ट, क्योंकि सारे के सारे 38 प्रोजेक्ट सिंध में ही लगे हुए हैं। यूटिलिटी स्केल के प्रोजेक्ट्स हैं वो सिंध में लगे हुए हैं। तो खालिद साहब से हम ये पूछना चाहेंगे कि आपके जो ये 350 और या 425 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं, आप दूसरी चीज़ों के अलावा इसका भी बताइएगा कि जो फ्रेमवर्क है, इस वक्त इवॉल्विंग फ्रेमवर्क है नेपरा का, is that okay or would you need some other support from the ministry या from center? क्योंकि देखें सेंटर में भी ये ख्याल है कि इन्होंने तो रिन्यूएबल्स में तो आना ही है, ठीक है? आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप बताइए ज़रा इस बारे में मज़ीद क्या हो सकता है। थैंक यू। लेट्स से जैसे एक सवाल रह गया कि आपने टैरिफ एक अनाउंस किया हुआ 18 रुपए पर किलोवाट आवर का, क्योंकि इसमें लोकल वैल्यू एडिशन वगैरह के पॉइंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच। अब काफ़ी सवाल, काफ़ी डिस्कशंस में माशाल्लाह। मैं चाह रहा था कि हाईलाइट करूँ कि जो हमने जिक्र किया था, आपने नसीर मिर्जा साहब का 93 के सेम्पोजियम्स में हमसे मिलते थे। माइक दूसरा ले लें आप। आज का जो आपका टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन का, वो डिसेंट्रलाइजेशन फिजिबली तब है जब रिन्यूएबल्स आर अवेलेबल। अगर रिन्यूएबल्स को हम माइनस कर लें तो फिर हमें वही नेशनल ग्रिड, वही हमें आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज पे पावर प्लांट्स दे वर फीजिबल। पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि सारी ग्रिड्स जो है हमारी वो सब ट्रांजिशन में दे आर कन्वर्टिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स एंड ग्रीन एनर्जीज अपार्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। जो डिस्कशंस हुए, दया साहब ने बोला, मेरे सामने, शायद सबने यही बोला कि डिसेंट्रलाइजेशन इज द वे। और जैसे नेपरा ने भी बोला कि जी नॉन एक्सक्लूसिव हमने डिस्कोर्स को करनी है। तो 4 पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर सिस्टम इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्राइसिस। Number 1, transport cost. Number 2, grid stability. Number 3, rural inaccess of the power. और नंबर 4 हमारा फॉसिल फ्यूल का जो 60% नेशनल ग्रिड है, जिसकी वजह से आज हमारा जो यूनिट है, अगर 2002 में हम अपने पावर सेक्टर को देखें तो उस वक्त सोलर का एक यूनिट 50 रुपये का था और थर्मल का एक यूनिट 3.5 से 4 रुपये का था। आज वो पूरा रिवर्स हो गया है कि सोलर का यूनिट 5 रुपये का हो गया और जो ग्रिड का थर्मल का यूनिट है वो 50 रुपये हो गया। और मैं आपको बताऊं कि जो 2005 में जो मुशर्रफ से उनकी मुलाकात हुई, डॉक्टर करम साहब डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे, उन्होंने फर्स्ट पाकिस्तान VN बताया कि हम 4 साइड करें। उन्होंने दिया VN 2025 जिसमें आज हम बैठे हुए हैं। और उस VN के अंदर उन्होंने जो पाकिस्तान का पावर सेक्टर दिखाया उसमें 1,63,000 मेगावाट की हमारी डिमांड थी, जिसका उन्होंने सोल्यूशन दिया था, जिसमें 14 से 15,000 रिन्यूएबल था, 33,000 कोई गैस के ऊपर था
ऑयल के ऊपर था, न्यूक्लियर पे कोई 50,000 था, और इस तरह का वो उस वक्त BNO बना था। जबकि हम 2025 में देख रहे हैं कि हमारी नेशनल ग्रिड 45,000 मेगावाट की है। NTPC हमारे डिस्कोस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो बैठे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन की वजह से, ये सोलराइजेशन की वजह से हमारी डिमांड जो कम हो रही है, हम कहाँ जाएँ। एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिसेंटली मीटिंग हुई जिसमें उनका सर पे हाथ था कि सोलर से हमें कोई खतरा नहीं, 6 आवर्स अ डे। हमें प्रॉब्लम है जो अभी बैटरी स्टोरेज आ गई है, वो हमें बिल्कुल बिठा दी। तो सर यही मेरी रिक्वेस्ट थी कि जो आपने हम सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिन्यूएबल्स में ऑन ग्रिड में हमने 2 सोलर पार्क्स कराची में लगाए हैं जिनका लोएस्ट टैरिफ नेपरा के पास है, और थ्रू कम्पेटिटिव बिडिंग है 3.4 सेंट 9 रुपये 81 पैसे का एक यूनिट पड़ता है। उसके बाद जो पब्लिक सेक्टर की बिल्डिंग्स हैं उनमें रूफटॉप हम 34 मेगावाट लगा चुके हैं, जिसकी हमने बिल्डिंग्स की जब हमने जाके पोस्ट एनालिसिस किया है तो हमारा डाउ हॉस्पिटल पे कोई हमने 2 से 2.5 मेगावाट सोलर लगाया, 300 मिलियन रुपीस के ऊपर कोई हमारा खर्चा है, जो कि 1 साल के अंदर हमने 135 मिलियन रिकवर कर ली है यूनिट प्राइसेस में। तो ये कास्ट थी जिसने हमें रिड्यूस किया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो अनएसेसेबल एरियाज है उसमें हमारा 2 दाम घरों का जो है वो वाइड प्रोग्राम चल रहा है। ऑन ग्रिड साइड पे जो 350 मेगावाट का जो आपने क्वेश्चन किया, इसका हमने 18 रुपये यूनिट दिया है, और आपने पूछा है कि इसका हम डिटेल भी बताएं। डिटेल ये है कि सोलर विंड विद बेस बैटरी स्टोरेज, ये कोई 3 से 4 सेंट में जो विंड की कास्ट है इस वक्त मिनिमम टरबाइन जो है वह 7 मेगावाट से स्टार्ट हो रही है। 2013 में हमने 1.5 मेगावाट वाली टरबाइन लगाई, आज हमारी मार्केट में 5 मेगावाट की टरबाइन भी कोई मैन्युफैक्चरर अवेलेबल नहीं है। मिनिमम 6.5-7 मेगावाट से टरबाइन शुरू हो रही है, और उसकी कॉस्ट अगर $1 मिलियन आज के हिसाब से देखें, $500,000 सोलर के हिसाब से देखें तो $400 मिलियन की कॉस्ट में 350 मेगावाट का सोलर विंड बेस प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसको अगर हम 20 साल के ऊपर एवरेज टैरिफ निकालते हैं तो ये ऑन एवरेज 12 रुपये तकरीबन 4 सेंट के पास ये जनरेशन कॉस्ट है। और ये भी हमने हायर साइड पे रखी है क्योंकि ये प्रोजेक्ट हम B2B में करने जा रहे हैं। B2B के अंदर गवर्नमेंट गारंटीज नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है, तो जब 4 सेंट्स के ऊपर आएगा और एक्चुअल कास्ट अगर 3 सेंट आए तो इसमें भी मोर फीचर है। उसके बाद ट्रांसमिशन नेटवर्क हमारा ऑलरेडी सिंध ने जो STTC कंपनी बनाई है 80 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन लगा के हम उसको 1 से 1.5 सेंट के अंदर उसको पूरे इंडस्ट्रियल एरिया कराची में पहुँचा देंगे। ये जो B2B होगा उसमें ये IPP मोड में लगाएंगे, ये IPP मोड में होगा। इसमें हमने मॉडल ये बनाया है कि जहाँ पे हमारा, क्योंकि गवर्नमेंट गारंटी नहीं है, जहाँ पे हमारा पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, अगर हमने 2-3 IPPs के माहदे साइन कर लिए 25 साल के तो हमारी बजट भी शायद बैठ जाए जिस तरह फैक्टर की है। तो हमने कहा कि वही बंदा SPV के अंदर बैठे जिसकी 5 मेगावाट 10 मेगावाट 20 मेगावाट डिमांड है इंडस्ट्रियल एरिया में, वारंटी में या क्वांटिटी में, और उसी को हम इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में अपना पोर्शन इन्वेस्टमेंट करेंगे। पावर परचेजर भी होगा, पावर सप्लायर भी होगा। B2B में जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि गवर्नमेंट गारंटी नहीं थी, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह रहे थे कि भाई हम किसकी गारंटी पे इतना कैपेक्स कॉस्ट पे करें। उसके लिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी वर्ल्ड बैंक ने जो गवर्नमेंट के साथ फ्रेमवर्क साइन किया है 10 साल पार्टनरशिप स्ट्रेटजी, जिसके अंदर $20 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें मेजर पोर्शन एनर्जी का है, और एनर्जी के अंदर उन्होंने B2B बिजनेसेस के लिए स्पेशल अमाउंट्स रिजर्व किए हैं, और दे विल गारंटी दिस प्रोजेक्ट्स ऑन म्यूचुअल बेसिस। ये तो एक और फंडामेंटल गलती नहीं होगी Thank कि you. हम उसके लिए जिसने आगे यूज़ करना है उसके लिए सर ये अभी क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं ना, तो आप ये सवाल काजी साहब से पूछिए। ये सबसे बड़ा इशू इसमें ये आ रहा है कि इस वक्त नेशनल ग्रिड का जो यूनिट है 47 रुपये का है, माशाल्लाह हम वो 40 पे आ गया है, 7.5 रुपये कम किया है। हमारा यूनिट है वो 18 रुपये को यूनिट है। दूसरी उसकी जो एक्टिव ये पोजीशन है कि
कि जो 18 रुपये का यूनिट ग्रीन एनर्जी से आ रहा है, आपको पता होगा कि यूरोपियन यूनियन ने किसी क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म दिया है एक्सपोर्ट्स के लिए, जिसमें अगर वो आपके प्रोडक्ट फॉसिल फ्यूल्स पे होगी तो उस पर वो हैवी ड्यूटीज होंगी और शायद बैन भी हो जाएगा 2027 में। काजी साहब, अच्छा अब हम ऑडियंस को बताते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में, लेकिन जो बलोच साहब का सवाल था ना, बड़ा चुपता हुआ सवाल था वैसे तो, लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल है। बलोच साहब आप ये सवाल पूछ लें, फिर हम ऑडियंस के पास जाएंगे। मार्केट का तो फंडामेंटल यही है ना कि उसको अगर आपने ओपन मार्केट की तरफ आना है तो वो जाने जिसने बिजली देनी है उसमें तो किसी का शोल्डर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। ये तो अल्टीमेटली टैक्स पेयर का पैसा है ना, चाहे वो इस जेब से जाए या इस जेब से जाए, वो तो टैक्स पेयर का पैसा है। फिर तो हम एक और मोनोपोली छोड़ के एक और किस्म की डिस्गाइज्ड मोनोपोली या एक और उसमें जा रहे हैं ना, तो वो तो मेरे ख्याल में वैसे फंडामेंटल ठीक नहीं है। बाकी अच्छा, फ्लोर इज ओपन। थैंक यू। पॉइंट ऑफ व्यू गलत हुई, मेरी अंडरस्टैंडिंग सही कहूँ नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है बलोच साहब का, आप सबके लिए भी है। अपने सवाल में इसको भी कर लें। इसके अलावा बिलाल साहब को लेते हैं, आपको आसिफ सिद्दीकी को, नवीद अंसारी साहब और अबू बकर साहब। बिलाल साहब प्लीज। एक जो चीज और इसके साथ है, मैं जो स्टैंडर्ड कॉस्ट का कह रहा हूँ ना, उसका भी कोई डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि ये 18 तो है मान लिया, लेकिन वो जो 38 खड़ा है वहाँ उसका क्या करेंगे? ये तो काम है कि फैसिलिटेट करें इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को। नासिर साहब एक सवाल ले लेते हैं आपको, यू विल गेट source and the utilization side. We do not, मैं जो ना डिमांड साइड का डेटा एनालिसिस करता हूँ। डिमांड साइड क्या है? इंडस्ट्री किस टैरिफ पे वायबल है, यू मे इंस्टॉल वॉट एवर। इफ द इंडस्ट्री इज नॉट डजंट हैव द कैपेसिटी टू बाय, मैं अभी इस वक्त एक हमारे यहाँ से में डेटा कलेक्शन उसकी एनालिसिस होती ही नहीं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी कांट टेक द राइट डिसीजन एट एनी लेवल। वो हो रहे हैं अपनी तरफ से, होते रहेंगे। अभी मैं रिसेंटली आई गॉट कनेक्टेड टू अ वेरी बिग प्रोसेस प्लांट जिस 40 मेगावाट के गैस इंजन एंड गैस टर्बाइन लगाई गई। इशू इज के देयर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स। गैस टर्बाइंस की 2 साल से घड़ी है, विच इज $4+ million वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट। द अदर थिंग इज कि इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ टैरिफ, अभी भी गैस पे चल रहा है, इट डजंट वांट टू लीव गैस। IMF has come in कि भाई आप लोग इतना सर्कुलर डेट क्रिएट करते जा रहे हैं इंपोर्टेड गैस के ऊपर, यू हैव टू स्विच ओवर टू ग्रिड। अच्छा आप मुझे बताइए, मैंने यहाँ पर पहले भी डिस्प्ले किया था, NTTC हैज इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ओवर द इयर्स। अभी उन्होंने वहां पर मेरी चूंकि फैज चौधरी से 1-to-1 डिस्कशन हो रही है, बिकॉज वो कोई पुराने लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग, एंड राइट लेट मी टेल यू द इंडस्ट्री इज नॉट थिंकिंग ऑफ स्विचिंग ओवर टू ग्रिड फ्रॉम गैस ग्रिड टू नेशनल ग्रिड। They want to install furnace wall engines. Can you imagine when we have extensive gas grid and we have extensive national grid, which is a big asset? मैं अभी आपको बता दूं कि मुझे अगर वहाँ से एक हार्डवायर सिस्टम ड्रॉ करना है ना NTTC के ग्रिड से, it will cost millions of dollars. आप नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करते। And I was talking to Engineers Guild and NTTC, very intelligent people there, that we have to utilize dormant assets also. जो बना हुआ है उसको इस्तेमाल नहीं करूँगा। आपको पता है they have invested a huge amount। अभी जो है उन्होंने recently KKI कमीशन किया है, because KKI will transfer K2 और K3 की जो पावर जनरेशन है वो K इलेक्ट्रिक को डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है ना। 1000-2000 मेगावाट पे चला गया, which is the winter demand of KE. It's only 500 megawatts. डिमांड साइड पे इंडस्ट्री इज नॉट रेडी टू प्रिपेयर टू गो टू गैस, बिकॉज गैस तो महंगी होगी, 6000 रुपए पर MMBTU पे आ जाएगी। ग्रिड कितने की देगा आप? रिन्यूएबल विदाउट ग्रिड यू, दिस इज नॉट पॉसिबल टू रिन्यू। रिन्यूएबल की एनी एक्सपेंशन हैज टू बी बेस्ड ऑन एन वेरी स्ट्रॉन्ग नेशनल ग्रिड, पावर ग्रिड। वो है ही नए भी आ रहे हैं, एक C5 1200 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट, पिछले साल उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है, उसकी क्या जरूरत थी, समझ नहीं आती। तो ये चीज़ें तो है, इंडस्ट्री जो है वो, जी आपके इस पे इसका जवाब आ जाए पहले हमारे यहाँ से, फिर आप सवाल कर लेते हैं।
तो अभी बलूच साहब स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात कर रहे थे, क्रॉस सब्सिडीज बीच में लोग डाल देते हैं कि थोड़ा सा सब्सिडी तो कुछ कम हुई है कम चला, लेकिन ये बलूच साहब इसका फिर देखिए ग्रिड को हमें लेके साथ चलना है, ऐसी बात नहीं, हम जान नहीं छुड़ा सकते जल्दी में, लेकिन एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट प्लानिंग कि जी हमने इससे हटना है। तो ये जो इनका सवाल है, कह रहे हैं कि जी जो बायर है, जो मेन चीज़ है, जो क्लाइंट जिसको हमारे वैसे जनरली कंसिडरेशन में वो कभी आता नहीं है, नेप्रा की हेयरिंग में नेप्रा कहती है कि हम क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो नहीं होते, तो उनका कौन ख्याल करेगा? वो वही हैं जो खरीदेंगे हमसे, अगर वो नहीं चाह रहे खरीदना तो हम क्या करें इनका? कुछ है? एक बार बेसिक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। अच्छा देखिए बात ये है, रिसर्च होती थी तो रिसर्च स्कॉलर पहले जनरल तलाश करता था क्या क्या काम हो गया है, और उसके बाद उस पर डेवलपमेंट करता, फिर टॉपिक ढूंढता था और रिसर्च करता था। आजकल जापान में अगर एक रिसर्च होती है तो यूरोप के एक गांव में दूसरे दिन खबर पहुंच जाती है कि ये हो गया है, उस पर काम कर सकता है। कम्युनिकेशन इज वेरी ऑल। तो अब जो रिसर्चर्स हैं वो पैराबोलिक हाइपरबोलिक स्टेप में जा रहे हैं बेसिकली। इसके मतलब ये है कि आज हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो आज की जो रिसर्च है उसके ऊपर ले रहे हैं। इन अदर वर्ड्स अगले हफ्ते या अगले महीने कुछ और होगा। बलोच साहब ने जिक्र किया था कि आज जो हम आज डिसीजन लेंगे 25 साल भुगतना पड़ेगा। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। अब आप जो डिसीजन लेंगे हो सकता है अगले 6 महीने में बदलना पड़ेगा आपको। तो ये एटीट्यूड चेंज होना होगा। पहली बात तो ये है, ये प्रोग्राम चेंज हो गए। दूसरी बात ये है कि ये भी हमें मालूम है आप सबको कि इस वक्त इंडस्ट्री और घर सब अपने ऐसे सिस्टम लगा रहे हैं कि उनको यूटिलिटी की ज़रूरत नहीं रहेगी, कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट है और पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स दैट। मतलब आप देखें जब से स्टोरेज का और डेवलपमेंट हो रहा है, अभी डेवलपमेंट हो रहा है, नई रिसर्चेज रोज़ हो रही हैं, स्टोरेज बहुत जल्दी सस्ती हो जाएगी। तो ये बिल्कुल होगा कि सोलर से अपनी प्रोड्यूस करेंगे बिजली, जो बकिया है कई को नहीं देंगे, वो अपने पास बैटरी में सेव करेंगे और उसे इस्तेमाल करेंगे। इन अदर वर्ड्स होल बॉल गेम इज चेंजिंग। ये जो हम लोग रेगुलेशन उन सब की बात कर रहे हैं, दिस विल ऑल एंड। जो ये बात कर रहे हैं प्रॉब्लम, यस दोज आर प्रॉब्लम। अब इंडस्ट्री अब इंतज़ार नहीं करेगी रेगुलेशन का, अब सिर्फ वो परमिशन लेगी कि क्या मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, परमिशन मिल जाएगी एंड दे विल डू दैट। तो इन अदर वर्ड्स वी हैव टू एक्सेलरेट द डिसीजंस। जो हम रेगुलेशन सब की बात कर रहे हैं, दिस हैज़ टू चेंज। अगर ये नहीं चेंज होगा तो हम वहीं खड़े रहेंगे और दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और देखिए, लेकिन मैं जो फंडामेंटल बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो उसका पुराना पैकेज है, उसको कोई सोल्यूशन दे सकता है। आप बताएं कि यार रवांडा में ये प्लांट हम जाके वहाँ बेच आए ना, एक आसान तरीका ये भी तो हो सकता है। पता नहीं कितने ही $1 मिलियन हमने अफगानिस्तान में पंप किए ना इस भाईचारे में, तो कोई ऐसी प्रपोजिशन भी हो सकती है कि जो हमारे इम्पोर्टेड कोल के ऐसे प्लांट्स हैं, हम कहेंगे यार इनको यहाँ से उखाड़ो। हमने भी तो यूएसी एक गिफ्ट लिया था ना 2007 में, जब हमारे पास वो ठीक है वो लगा नहीं। मैं कोई जो देखें पावर प्लांट की डायनामिक्स को भी थोड़ा समझने की जरूरत है ना। देखें आज जो नेट मीटरिंग का बंदा जो रह रहा है, मैं खुद मेरे पास लगा हुआ है, ठीक है, मेरे पास खुद लगा हुआ है, लेकिन ये किसकी बेसिस पे मैं इंजॉय कर रहा हूँ अनइंटरप्टेड और वो सारा, ठीक है। तो यही है ना कि इसके पीछे एक ग्रेट पूरा बैटरी के तौर पर मेरे पास है। तो देखें प्लानिंग का डॉक्यूमेंट जो है, प्लानिंग मीन्स मैंने प्लान करना है, जो मुझे आए ना, मैं जिस जगह खड़ा हूँ और जो मुझे नज़र आ रही है, जितनी मेरी विजिबिलिटी है उसके हिसाब से मैंने इसको देख रहा है, तो उसकी कम से कम क्या हो सकता है 1 साल का पीरियड। इसीलिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये कहता है कि जो भी आप प्लान बनाएंगे उसको आप हर साल अपडेट करेंगे। इससे ज़्यादा वो क्या करें, थोड़ा बताएं ताकि हम उसको ठीक करें। पुराना ऐसा है जो जिस तरह हमने ध्यान में पुराने ज़माने में मैं वही मिसाल दूंगा कि आज से 10 साल पहले तो मतलब इसी इवेंट कॉरिडोर झपकी में हमने 1.5 मेगावाट 1.6 1.7 और अप टू 2 मेगावाट तक विंड टरबाइन लगाई। और उस वक्त हमने ये जो हमारा 350 मेगावाट का प्रोजेक्ट है
उस वक्त हमने उसमें 100 मेगावाट 50 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड रखी थी। अब उस 100 मेगावाट के प्रोजेक्ट की जगह आज हम 350 मेगावाट सोलर विंड लगा रहे हैं। जो 1.5 मेगावाट वाली टर्बाइन है, आज मेरा दिल कहता है कि उसको रिप्लेस करके 10 साल में 7 मेगावाट की लगाऊं, या मार्केट तो 15 मेगावाट तक आ चुकी है, कमर्शियली वायबल 8-10 मेगावाट आ चुका है। तो जो चेंजिंग पैटर्न है उसके साथ हमें जाना पड़ेगा, और जो पुरानी हमारी मोटी टीचर है उनको संभालना पड़ेगा, ना कि उनके चक्कर में वो बैगेज उठा के जब वो सैलाब आता है तो बंदा बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़ के अपने वो डिग्रीज और इम्पोर्टेंट चीज़ें लेता है, जिसके साथ वो आगे जाए। जितना बर्डन कम होगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो 25 साल के हमारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको ये तो उम्मीद है ना कि 25 साल के बाद हम फ्री होंगे, नए वादे ना करें। मतलब ये हुआ कि हमें थर्ड कोल के जो ब्लॉक 1 और 2 पे लगे हुए हैं उसको हम अभी से पास कर दें। अगर वो वायबल हो थर्ड कोल के प्रोजेक्ट नेशनल ग्रिड की नेशनल ग्रिड के डेटा बेस में थर्ड कोल के प्रोजेक्ट सेकंड या थर्ड मेरिट ऑर्डर पे है। अगर वो मेरिट ऑर्डर पे नहीं आते लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, बट इट डजंट मीन कि हम ये छोड़ दें, नहीं, इससे भी ज्यादा एक प्रेडिक्शन आ जाता है। चले हम एक ही देखिए, बात तो आपकी भी दोनों की बात सही है। वो ये चाह रहे हैं कि जो हमारे पास चीज़ है उसको किसी तरह सैल्वेज कर ले, उसके काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, मैक्सिमम लायबिलिटी 25 साल है, लेकिन वो भी पॉसिबल है सर। और सर सोल्यूशन चाहिए। एक क्वेश्चन ले लें साहब। एक मैं प्रोडक्शन करूँ, ठीक, जस्ट 1 मिनट ओनली, कि ना सिर्फ पावर सेक्टर जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है, ना सिर्फ पावर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर की एनर्जी और हाउस होल्ड जो डोमेस्टिक है, इसको हम अगले 4 से 5 साल के अंदर रिन्यूएबल पे ले जाएंगे। ये कराची से खैबर तक जितनी भी ट्रांसपोर्ट जा रही है इसमें बैटरीज होंगी, जाहिर है बैटरीज की चार्जिंग सोलर पे डे टाइम कम होगी। इस वक्त जो 40 रुपये यूनिट है हमारा बैटरी का, ये ईवी चार्जिंग स्टेशंस के लिए, ये हमारी ईवी चार्जिंग ये झम्पी में जो रात की हवा लगती है, जो वहाँ से फ्री इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, वहाँ से कराची से खैबर तक की बैटरीज चार्ज होंगी, और हम पेट्रोल स्टेशंस पे जाके इस तरह वर्षन के हम गैस के डब्बे चेंज करते थे, उसी तरह बैटरी चेंज की और ट्रांसपोर्ट सेक्टर बनेंगे। नेशनल ग्रिड हमारा अगर देखें सस्टेनेबल नहीं है, 50% डोमेस्टिक पे है। अच्छी हेल्दी नेशनल ग्रिड वो होती है जो इंडस्ट्री को प्रमोट करे, उसकी मैक्सिमम यूनिट जो सर्वाइवल है वो इंडस्ट्री से होती है, हमने उसको भी डोमेस्टिक पे बिठा, उसको भी रिन्यूएबल कवर करेगा। ठीक है, थैंक यू वाले साहब, बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं। अब हम नवीद अंसारी साहब से डिसेंट्रलाइज क्या होता है और इसी को लेके चलें, क्योंकि डिबेट जो है ना इसी की फिजिबिलिटी पे हो रही है। तो आप ये देखिए कि रिन्यूएबल्स के क्लस्टर्स हैं और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करके, और अगर आप उनको अलाउ करेंगे तो अपनी विसिनिटी में वो बेचेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और जो सरप्लस होगी वो इवेंचुअली आपकी नेशनल ग्रिड पर आएगी। ठीक है, तो एक पहलू ये बिल्कुल हमें क्लियर होना चाहिए। तो नेशनल ग्रिड should be able to absorb the surplus electricity that is being produced by the renewables at a lower cost. जब वो उसके अंदर आएगी और तो वो फिर आपसे हटते जाएंगे, तो आपको अपना जो स्ट्रक्चर है, जो टैरिफ है ना, उसका स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। जो बल्क कंज्यूमर को आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। आप उल्टा चल रहे हैं, आप जो सब्सिडाइज्ड जो है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है उनको सब्सिडी दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जो बल्क कंज्यूमर है वो इतनी महंगी हो जाती है, या रेजिडेंशियल में भी जो अपर स्लैब्स के लोग हैं इतनी महंगी है कि वो क्यों यूज़ करेंगे। और जो अपर स्लैब के लोग जो यूज़ कर सकते हैं वो हैं जो मुतमव्वल लोग हैं, वो तो रूफ टॉप लगाएंगे, और लगा भी लिया, और बेस और लिथियम आयन और दीगर सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वो तो आप पे हटते चले जाएंगे। तो आपको तो टैरिफ अपना रिड्यूस करना चाहिए। आपने भी 7 रुपये किया है, तो इससे कितना फर्क पड़ जाएगा। तो आपको एक इंडक्शन करनी चाहिए लोअर उसकी, लेकिन इसमें सवाल से पैदा ही होता है। एयरपोर्ट की हमारी लाइन थी जिसके लिए हमें 25 मेगावाट पावर चाहिए था, हमने इसको एस्को को लिखा कि जी आप हमें कितने मेगावाट का पावर दें, उन्होंने सिस्टम डेवलपमेंट चार्जेज और सिक्योरिटी डिपॉजिट इतनी बिलियंस ऑफ रुपीज़ में भेजी कि गवर्नमेंट हाउस से फिर बैठ गई कि 50 मेगावाट अपना विंड सोलर पे ही लगा देंगे।
तो ये है कि अल्टीमेट कॉस्ट है प्रोफेशनल पीरियड की इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर वो 50 रुपये यूनिट देगी तो रिजनेबल रहेगी। बलर साहब आप देखें, मैं तो समझता हूँ कि हम एक मोनोपोली से हट के दूसरी मोनोपोली कर रहे हैं। जो आज इस वक्त हमें महसूस हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये कर लिया, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का भी एक्सचेकर पब्लिक मनी है। बात ये है, वो आज आपको एक छोटा सा तो नजर आ रहा है, लेकिन आप इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो ये भी उसी तरह एक जो है ना बॉटम लेस किस्म की वो बस बास्केट होगी, बकेट होगी जिसमें आप पैसा डुबाए जाएंगे, अल्टीमेटली वो नहीं होगा। लेकिन सोल्यूशन वो नहीं है जो हमें देखना चाहिए। और सर आपका जो क्वेश्चन था ना कि जो इसका ये तो इसका टाइटल ही बता रहा है ना कि ये नेशनल ग्रिड से फिर कनेक्टेड नहीं होगा, ये कोई लोकल कोई कोऑपरेटिव होगा या कोई ऐसा फार-फ्लंग एरिया होगा जहाँ ग्रिड एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं देखें, ये तो फिर इवॉल्व होने की बात है ना, ये तो इवॉल्व होने की बात है ना। डिसेंट्रलाइज्ड जनरेशन डिसेंट्रलाइज्ड होगी, लेकिन हम एक्सेस एनर्जी को व्हीलिंग तो कर सकेंगे, नेशनल ग्रिड पे बेच तो सकेंगे। क्यों नहीं वो तो फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है। वो तो और वो जो रिन्यूएबल प्रोड्यूस करेगा वो अपनी फैसिलिटी में भी देखें, ये भी एक जो है ना थोड़ी सी एक उसको डिटेल में लेवल डिटेल्स वाली बात है। देखें, बात ये है कि आपको फिर मैं दोबारा उस पर आऊँगा कि हमें अपना जो सिस्टम है वो देखना पड़ेगा कि वो सिस्टम है क्या। हमारा इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट और सिक्योरिटी कम इकोनॉमिक डिस्पैच वाला एक सिस्टम है। वो क्या सिस्टम होता है कि जो लोएस्ट एनर्जी वाला प्लांट है वो पहले चलता है, उसका एक पूरा उसने डिस्पैच का एक स्टैक रखा हुआ है हमारे नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में, ठीक है। जो लोएस्ट वाला है वो पहले चलेगा, इसी तरह हाईएस्ट को। अच्छा, रिन्यूएबल या इंटरमिटेंट का मसला ये है कि और ये स्टैंडर्ड है, कोई ऐसा वो नहीं है। हमें ये देखना है कि उसकी कैपेसिटी, फर्म कैपेसिटी कितनी है। अगर 100 मेगावाट का सोलर लगा हुआ है तो फर्म कैपेसिटी उसकी 20 मेगावाट है। देखिए, ये ट्रांजैक्शंस हो रही है ना रियल लाइफ में। वहाँ एक अगर फर्ज किया लाहौर में कंज्यूमर है और यहाँ उसने फर्ज किया एक सोलर या विंड से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो प्रैक्टिकली वो 100 मेगावाट उसका 100 मेगावाट नहीं है। उसको एक पोर्टफोलियो डेवलप करना पड़ेगा जिसके साथ वो गैस को करे, फर्नेस ऑयल के साथ करे। ये अगर आप इसकी जो मार्केट की जो डिज़ाइन है उसको हम अगर देखें तो उसमें एक पूरा कमर्शियल कोड है, उसको हमें देखना होगा। इसके साथ उसका ग्रिड कोड है, वो देखना होगा। ये इतना सिंपल नहीं है कि इधर मैंने अगर फर्स्ट किया 5 मेगावाट डाला तो मैं वहाँ से भी 5 मेगावाट ले रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। देखें, आपकी रिक्वायरमेंट तब्दील होती है आवरली, हाफ आवरली बेसिस, ठीक है। ये मैं यहाँ से स्विच ऑफ करता हूँ या मैं यहाँ 6 लाइट्स कर लूँ तो हो सकता है ए वाला जो है वो अपना हाईएस्ट जो प्लांट है उसका वो चलाना उसको पड़ जाए। तो ये पूरी एक जो है टेक्नो कमर्शियल डिसीजन है। ये सिंपल वो नहीं है कि कमोडिटी आपने यहाँ इन कर दी और वहाँ से ले ली, ऐसा इस तरह सिंपल नहीं है। खालिद साहब अभी टॉपिक वही है, इसके बाद हम जाएंगे इरफान साहब एक क्वेश्चन कर सकता हूँ छोटा सा, वो बलोच साहब के लिए है। वो सर हमारे लॉसेस कितने हैं और उस पे क्या कदम उठा रहे हैं, क्योंकि हम अपने लॉसेस को ट्रांसफर कर देते कंज्यूमर और सर्कुलेटर के ऊपर। तो नहीं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इस वजह से कि आपको कॉस्ट कम करनी है। तो ऑलवेज इट इज द कंसेप्ट जो मेंटालिटी इज कॉस्ट प्लस चार्जिंग टू द कस्टमर। यू हैव टू, अगर आपको compete करना है, you have to improve your efficiencies. मेरा ख्याल है थोड़ा सा हम जो बात हम करना चाह रहे थे उससे हट गए हैं। आई थिंक जो बात हो रही थी वो डिसेंट्रलाइज्ड पावर सिस्टम्स की, वो सिस्टम्स कम्युनिटी बेस्ड। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम्स में healing is not that important. Healing कम्युनिटी बेस्ड जो सिस्टम होगा उसमें पहली कोशिश ये होगी कि एक सर्टेन
jurisdiction है, एरिया है, उस एरिया के रहने वालों को जो भी सस्ती तरीन बिजली मिल सकती है वो मिले, जिसके वक्त के फवायद भी होंगे कि उनको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के जो है लॉसेस हैं वो उससे उनकी बचत हो जाएगी, और उसके साथ साथ जो उसमें जो एक डिपेंडेंस है या एक मजबूरी है उनके लिए कि वो हैवी हाईली प्राइस्ड बिजली खरीदे, उससे उनकी बचत हो सके। आई थिंक दिस वाज द मेन इशू। अब इसके साथ साथ जो जो उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं डेफिनेटली वो है कि भाई हमारे पास क्या हमारा जो ग्रिड है, नेशनल ग्रिड इज दैट ग्रिड जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी हैवी कैपेसिटी है और उस लिहाज से एक मिनट को एकदम ये ख्याल आता है तो शायद हमारा ग्रिड केपेबल है इतनी बड़ी पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए, बट प्रैक्टिकली वी नो दैट इट्स नॉट द केस। हमारे विंड फार्म्स जो है वो एवोक्यूएट नहीं हो रही पावर हमारे विंड फार्म्स, इट मीन्स कि वहाँ पे एक वो है बॉटलनेक है। इसी तरीके से हमारे जो के जो सोलर प्रोजेक्ट्स होंगे, सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी वजह से जो हमारे नेशनल ग्रिड को डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, वो नेशनल ग्रिड उसको केपेबल नहीं है उसको ओवरकम करने के। तो पॉइंट ये है, द वे आई सी दिस प्रॉब्लम इज कि भाई एक साइड पे तो आपके जो स्टेबिलिटी के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं नेशनल ग्रिड्स के बिकॉज ऑफ दिस रिन्यूएबल एनर्जी, एक इशू है। दूसरा इशू ये है कि हम ये समझते हैं कि इसका एक अच्छा हल सारी दुनिया के तरीके से, और उस दुनिया में बांग्लादेश भी शामिल है, उसमें इंडिया भी शामिल है, उसमें कंबोडिया भी शामिल है, उसमें नाइजीरिया भी शामिल है। उनकी बात कर रहे हैं हम, सिर्फ जर्मनी की और उसकी यूके की बात नहीं कर रहे हैं, वो कंट्री भी शामिल है। उनके पास ही सिस्टम चल रहे हैं, उनके पास डिसेंट्रलाइज्ड पावर है, लिमिट है, उन्होंने इनोवेटिव फाइनेंसिंग कर ली है, फिर इनोवेटिव पे एज यू कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ चले गए, वो मॉडल्स बन गए। हम तो हमारी ये ख्वाहिश है, हम इस गोरखधंधा अगर इसको कहा जाए उसमें हम नहीं जाना चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि ये वीलिंग से हमारी जरूरत पड़े, हमारी कम्युनिटीज जो है वो बेनिफिट कर सकें जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, चाहे उसमें बायोमास हो, उसमें बगास बेस्ड सिस्टम्स हो, रिन्यूएबल हो, उसमें रन ऑफ द मिल, रन ऑफ द रिवर, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की पॉसिबिलिटी हो, व्हाटएवर इज द पॉसिबिलिटी डिपेंडिंग ऑन दैट लोकेशन, सोलर, स्मॉल विंड, सोलर, उस सब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो हमारा। हम एक इस वक्त टेक्निकल इशू पे भी आ गए हैं कि क्या हमारा ग्रिड जो है कैपेबल भी है इंटरमिटेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, और वो नहीं है। हम सबको पता है कर्टेलमेंट की बात हो रही है, इवैक्यूएट नहीं हो पा रही। 40% हाई सीजन में 40% विंड कर्टेल हो रही है, उसका हम एमपी दे रहे हैं, नॉन पार्लियामेंट्री पॉलिसी, टेक और पे के। दीज आर द इश्यूज। अब मैं जरा बकर साहब से एक मिनट ऐड करूँ। ओके, मैं ये कहूँगा कि मैंने जिन कंट्रीज के नाम लिए हैं, आप सारे कंट्रीज का उठा के देख लीजिए, वहाँ पे पॉलिसी फ्रेमवर्क, दैट इज द फर्स्ट एरिया ऑन विच पीपल वर्क। एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है, उसके बाद फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है, सब बनता है। तो हमारे यहाँ अगर इस में जाते हैं, उस पॉलिसी फ्रेमवर्क की सबसे पहले जरूरत होगी। दूसरी चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट, वो है रेट ऑफ स्टेट। वी हैव कराची में नो गो एरियाज होते हैं, मुसीबत से वो ख़त्म हुआ है। सिंध में भी अभी इतने एरियाज हैं जो नो गो एरियाज हैं, वहाँ से बिजली का कनेक्शन नहीं होता। हमारी डिस्कोज है, उनके पास रिसीवेबल्स नहीं है। कैन वी मैनेज डिसेंट्रलाइज्ड पावर अंडर दीज कंडीशंस? those are other important। अभी हम ये करते हैं कि हम बकर साहब से सवाल ले लेते हैं, साथ में फिर आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं परवेज साहब के पास वो सर अच्छा नहीं, वो अब मैं सवाल ऐसी सिचुएशन रहती है, इसको मेरे ख्याल में क्लियर जरूर करना चाहिए, और ध्यान में रखें मैं स्टेटस को आदमी नहीं हूँ, लेकिन रियलिटी भी हमारे सामने होनी चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी एक बात वर्ड या एक को जो है उसके पीछे भाग रहे हैं और एक्चुअली आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं।
देखें, आज अगर आप एक इलाके को नोटिस दे दें, कोई एक कम्युनिटी सेलेक्ट कर उसको इसको को आप नोटिस दे दें कि ये मेरी टाइम लाइन है, इसके बाद मैं आपसे बिजली नहीं लूँगा, यू कैन डू दैट। उसके बाद आप उसका कोई पोर्टफोलियो बनाएं, कोई वेंट टर्बाइन लगाएं, वो करें, एक कम्बिनेशन बनाएं कि वो आप सस्टेनेबल रखें, यू कैन डू दैट, ठीक है। उसको आप 1 ईयर नोटिस दें, मतलब एक फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है। ये नहीं है कि नेपरा ने पकड़ा हुआ है या उसने पकड़ा हुआ है। देखिए, हम मीठा मीठा मुझे हर्ष करते थे और कड़वा कड़वा सोचो, बात उससे नहीं चलेगी। देखें, अगर आपने रिन्यूएबल का बेनिफिट लेना है तो फिर जो उसने वो लगाया हुआ है, जब आपके पास कुछ नहीं था तो वो तो फिर उसको वो तो आपसे लेगा ना, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे। जब तक जो है सोलर 50 रुपए में था, मेरे सामने मैंने वो जो पहली एप्लीकेशन आई थी, ये इसकी थी वाह वालों की, 35 रुपए का उसको टैरिफ था, उन्होंने दिया और वो बात सारा इंडेक्स था। और ये बात है, अगर मैं सही तरह रिकॉल करता हूँ तो गालिबन 6-7 की या 2011 की बात है, ठीक है। और सारी चीज़ें इंडेक्स थी, क्योंकि कोई चीज़ यहाँ है ही नहीं। जो मैं पहले फंडामेंटली कह चुका हूँ कि हम बात तो करते हैं दूसरों के साथ मुकाबले की, इंडिजिनस हमारी कोई चीज़ है ही नहीं। हर चीज़ जब इम्पोर्ट होगी तो वो तो कहेगा कि जी मैं तो डॉलर लगाए हुए हैं, तो सी बात है। तो ये आप क्लियर कर लें। बेशक आप प्रोड जो है, जो कराची इज ऑलवेज लीडिंग इन ऑल थिंग्स ना, तो कोई एक कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेना और आज ये को नोटिस दे दें कि जी बहुत हो गई जी, आपके बड़ी आपने हमारी खिदमत की, लेकिन नाउ टाइम हैज कम, हम अपना सर फूलें। तो इट कैन बी डन, आप करें। बिल्कुल। फिर आप साथ ही कमेंट करें। थैंक यू। और नेशनल ग्रिड से कनेक्ट भी होना चाहते हैं, तो एक डिस्कनेक्ट है जो कि मोस्ट कॉमन ऑडियंस नहीं समझती कि आपके पास ग्रिड पे एक एंसिलरी सर्विसेज हैं जो कि ग्रिड आपको दे रहा है, फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन आपको दे रहा है, वोल्टेज। थैंक यू जी। एक तो माइक्रो ग्रिड की, बिल्कुल मैं कहने लगा था कि माइक्रो ग्रिड के रेगुलेशन तो मौजूद है नेपरा के, तो कम्युनिटी बेस्ड और ये बात हो रही है, तो मैं ज़रा इससे तो हटके, क्योंकि अभी तक जो पहले डिस्कशन हो रही थी कि हम माइक्रो ग्रिड भी करना चाहते हैं और नेशनल ग्रिड से कनेक्ट भी होना चाहते हैं, तो एक डिस्कनेक्ट है जो कि मोस्ट कॉमन ऑडियंस नहीं समझती कि आपके पास ग्रिड में एक एंसिलरी सर्विसेज हैं जो कि ग्रिड आपको दे रहा है, फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन आपको दे रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन आपको दे रहा है, रिएक्टिव पावर आपको दे रहा है। उसकी कॉस्ट कोई देने को तैयार नहीं है। आप जब 10 रुपए 15 रुपए की बात करते हैं तो आप सिर्फ रिन्यूएबल की बात कर लेते हैं कि मैं बस सोलर ले लूंगा, बट उस सोलर की बैक एंड पे फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन जो आपको ग्रिड दे रहा है, जो वोल्टेज, उसके पैसे कौन बेयर करेगा, जो कि अदर कस्टमर पे जाते हैं। अच्छा, नेशनल ग्रिड, अगर हम ये मतलब अभी काफी लोगों ने अलग अलग वो बातें की हैं, जो मिला के करें तो शायद आसान हो जाएगा कि आज दुनिया में जो हो रहा है हर एक को पता है। अगर माइक्रो ग्रिड या स्मॉलर चीजें सोल्यूशन होती तो पूरी दुनिया में नेशनल ग्रिड खत्म हो चुके होते हैं। यूएस, यूके सब हमसे बहुत आगे, तो लेकिन वहाँ नेशनल ग्रिड और स्ट्रेंथन हो गया। आफ्टर द माइक्रो ग्रिड या रिन्यूएबल्स, दे आर डूइंग मिलियंस बिलियंस डॉलर इन्वेस्टमेंट इन देयर नेशनल ग्रिड। नेशनल ग्रिड की खूबसूरती वो ये है कि वो डिफरेंट रिसोर्सेज को कंबाइन करता है, वो हाइडल को, न्यूक्लियर को, कोल को, हर चीज को कंबाइन करता है। एंड आफ्टर दिस क्लाइमेट चेंज आप किसी एक चीज पे रिलाई नहीं कर सकते। इस साल बारिशें कम हुई हैं, आपको पता है डेड लेवल है सारे, पानी से जनरेशन कितनी होगी। अगले साल विंड नहीं चलेगी तो आप क्या कर लेंगे, या 1 महीना लाहौर के अंदर विंटर्स का गुजारें जिसमें स्मॉग आती है, तो सोलर से कितनी जनरेशन हो जाती है। सो किसी ना, अगर एक विंटर का टिपिकल टाइम है जब ना हाइडल है, विंड लो है, सोलर क्लाउडी डेज में नहीं आ रहा, तो कौन देगा बिजली? बैक एंड पे कोई ना कोई कोल या कोई चीज देगी। So there should be some ideal mix, मतलब only renewable is not the solution, there should be some ideal mix। और ग्रिड के उस पेन को समझना चाहिए जो कि उसको पे करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो मिसिंग एलिमेंट है अभी तक जो मैं समझता हूँ वो ये है कि एंसिलरी सर्विसेज की कॉस्ट कोई नहीं निकालना कि यार उसकी कितनी कॉस्ट है, फिर ये कि हमें जो प्लानिंग है उसमें किस चीज़ का कितना मिक्स होना चाहिए। और एज अ इंडस्ट्री भी अगर मैं आपको बात करूँ कि सर्टेन इंडस्ट्री तो विंड कॉरिडोर में बैठी है, नूरियाबाद इधर उधर, लेकिन जो लाहौर में बैठा है, जो इवन या कोरंगी में बैठा है, वो कितनी जनरेशन सेल्फ कर लेगा, गैस पे करेगा, RLNG पे करेगा। तो असल में नेशनल ग्रिड की स्ट्रॉन्ग करना
तमाम लोगों के बेनिफिट में, उसके ऊपर वर्किंग होनी चाहिए, उसके एंसिलरी सर्विसेज की कॉस्ट होनी चाहिए। जस्ट एक लास्ट के अगर आप मतलब लैजार्ड हर साल एक लेवलाइज कॉस्ट ऑफ एनर्जी इशू करता है एक रिपोर्ट हर साल, अगर आप उसकी लास्ट ईयर की रिपोर्ट देखेंगे तो यूएस में उन्होंने हर रीजन की रिपोर्ट इशू की है कि रिन्यूएबल की जो फर्मिंग कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट उससे डबल है। अगर आपको आज 9 रुपए का सोलर मिल रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए 18 रुपए की कॉस्ट पड़ रही है, उसके पीछे उसको बैलेंस करनी है, उसकी पूरी स्टडी मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो अब ग्रिड पे एक जो बड़ा मसला आ रहा है वो ये कि आपके पास बेस लोड के प्लांट बहुत बड़े बड़े हैं, और अगर आप दिन में सोलर ले आए, रिन्यूएबल ले आए तो उनको पार्ट लोड में चलाना पड़ता है, वो पार्ट लोड की भी पैसे घुमा के हम ही लोगों ने लिया। तो मेरे ख्याल में वो ग्रिड के ऊपर एक बहुत अच्छी प्लानिंग जिसमें आप रिन्यूएबल्स को इंडक्ट करें लेकिन उस ग्रिड को स्ट्रॉन्ग करें। ग्रिड की अब आप देखें पावर परचेज प्राइस जो डिस्कोस को मिलती है CPPA जिसे दैट इंक्लूड 70% कैपेसिटी चार्जेस एंड 30% टू एनर्जी चार्जेस। अब वो 70% अगर आप अपने बिल में देखें जो डिस्को से आपको मिलता है उसमें 50% कैपेसिटी चार्जेस होते हैं, 25% लॉसेज होते हैं जिनकी बात की आपने, और 25% उनकी मार्जिन वगैरह सारा कुछ होता है। तो अगर आपने रिड्यूस करनी है प्राइसेस तो कैपेसिटी चार्जेस निकाल लें, आपको लॉसेस खत्म करना है, और वो फिर मिनी ग्रिड से हो सकता है, नेशनल ग्रिड से नहीं हो सकता, बड़ी बड़ी डिस्को से नहीं हो सकता। ये ऐसे ही रहेंगे, कई सालों से ये कर रहे हैं, बहुत मौका मिला है डिस्कोस को इम्प्रूव करने का, लेकिन अगर आप इनको देखें तो सब के सब जितने भी डिस्कोस हैं हमारी उनकी लायबिलिटीज उनके एसेट वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। ये उनका परफॉर्मेंस है। एक मैं छोटी सी बात बता दूं, जो इस वक्त हमारी प्राइसिंग है उसमें अगर 100 रुपए की हम बिजली खर्च किया है तो उसमें 85% जनरेशन की कॉस्ट है, 5% NTDC या उसकी ट्रांसमिशन की कॉस्ट है। जो मर्जी आप कह लें, जितने मर्जी वो इनएफिशिएंट है, नालायक हैं, आपकी सर्विस डिलीवरी जीरो है, आपका वो नहीं करते, वो 10% है, वो 10% है। तो ये भी हमें करेक्ट करने की जरूरत है। मलिक साहब वो जो 85% आप कह रहे हैं उसमें कैपेसिटी चार्जेस कितने हैं? अगर उसको देखें तो वो उसका 30% कैपेसिटी है ना, फिर वही बात आ यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस NTDC के NTDC के सिस्टम चार्जेस तो बेयर मिनिमम है, 2.5% है, लेकिन आप जो पावर परचेज प्राइस जो नेपरा निकालती है उसके पीछे जनरेशन है ना, वो देखें ना, वो जनरेशन जो है वहाँ मसला है ना, तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कैपेसिटी चार्जेस है ना उसमें 70%। बात ये है कि वो फिर कोई बात आ गई कि उसके लिए फिर स्टेबल ग्रिड कहाँ से आएगा, कुछ ना कुछ तो करना है। चले जो गलती हो गई कम से कम आगे अब ठीक कर ले तो फिर भी शायद अगले 10 साल में हमको ठीक हो सके, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली इसी तरह मुझे यहाँ पे एक बात जो मैं एडअप नहीं कर पा रहा हूँ वो ये कि जहाँ हम डिसेंट्रलाइज पावर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, यहाँ बेसिकली नेशनल ग्रिड और माइक्रो ग्रिड्स की जंग नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अगर इसको रियल या टेक्निकल साइड पे भी देखें सो इट इज नॉट लाइक कि अगर माइक्रो ग्रिड होगा तो ग्रिड का कोई इंटरप्ले नहीं है, ऐसा नहीं, ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे अबू बकर ने भी कहा कि जिस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज में ग्रिड पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन साथ साथ हमारे अपने आसपास के नेशंस को देखें जो हमारी कंडीशन में है, जो हमारी इकोनॉमिकली और या जिस तरह से वो डेवलपिंग कंट्रीज है, बांग्लादेश देख लें, अफ्रीका पूरा देख लें, पड़ोसी मुल्क इंडिया को देख लें, तो हर जगह पे जो सोल्यूशन जो सक्सेसफुल सोल्यूशन जो अब तक साबित हुआ है वो माइक्रो ग्रिड्स का हुआ है, जिसका कतई ये मतलब नहीं है कि नेशनल ग्रिड जो है वो खत्म हो जाएगा। दे बोथ आर नॉट एनिमीज। डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड को पकड़ने नहीं देखें अब इसमें एक बात ये है कि आप इसका मतलब ये नहीं कि देयर विल बी जीरो और नो नेशनल ग्रिड एंड ओनली डिसेंट्रलाइज्ड। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि क्या अभी की कंडीशन में डिसेंट्रलाइज्ड माइक्रो ग्रिड फीजिबल है? यस है। क्या 100% डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पॉसिबल नहीं। अच्छा अब मैं नेशनल ग्रिड की इम्पोर्टेंस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है,
लेकिन अगर वो नेशनल ग्रिड हमें 50 रुपये यूनिट दे रहा है वो किसी काम का नहीं। दूसरा मैं ये बताऊं कि जो हमारी 350 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, इसकी सोलर विंड बेस हाइब्रिड के साथ 54% कैपेसिटी फैक्टर है, जो कि एक थर्मल प्लांट के इक्विवेलेंट है। अनइंटरप्टेड सप्लाई 350 मेगावाट का प्रोजेक्ट हमें समर में 210 मेगावाट 24 आवर्स दे रहा है हमारी स्टडीज फिजिबिलिटी में, 170 मेगावाट हमें वो विंटर में दे रहा है 24 आवर्स। मैं सम अप ये करूँगा, मेरी एक मीटिंग ये जानती हूँ ना कि जो ये नेशनल ग्रिड और माइक्रो ग्रिड अगर कवे और कछुए की दौड़ है तो उसमें भी अगर कौवा सो जाता है तो कछुआ जीत जाता है। हमारी ग्रिड अगर 50 में चलेगी तो हम स्मॉल माइक्रो ग्रिड से आके 10, 20, 18 रुपए में जीत जाएंगे। तो काजी साहब का कहने का मतलब ये है कि नेशनल ग्रिड को एफिशिएंट हमें करना चाहिए, मीनवाइल जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो सकती है वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का बेनिफिट लेना चाहिए। अभी हमने एआई के टॉपिक पर कौन सा टच नहीं किया और माइक्रो ग्रिड में आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस। एआई का जो टॉपिक है वो एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइक्रो ग्रिड में सिर्फ ना ये कि आपको बेहतर से बेहतर एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकती है बल्कि आपका कैपेक्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकती है। अभी जो आपने पीने की बात की है, अभी उसके अलावा जो बांग्लादेश में बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है पीयर टू पीयर ट्रेडिंग, एनर्जी ट्रेडिंग की, वो किस तरह से हो रही है? इसी तरह से हो रही है फ्रेंड्स। हम मॉनिटर कर सकते हैं कंजम्पशन के, जनरेशन के, उसकी बेसिस पे सिस्टम को मजीद एफिशिएंट कर सकते हैं सच दैट के कैपेक्स हमारा अभी भी कम। सो पॉइंट इसके माइक्रो ग्रिड अभी जो है अगर वो उसमें एआई से एक तरह से हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो स्टिल वी आर नॉट द मोस्ट एफिशिएंट। हम एफिशिएंसी तो इंक्रीज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू व्हाट वही 50 रुपए का यूनिट जो काजी साहब कह रहे थे, बट इज दैट इनफ? लेकिन एआई के साथ हम वी कैन डू मच मोर बेटर। So you are utilizing AI for cost and reliability optimization? Yes, of course. Yeah, we do it. We do the trend analysis. We have our algorithms based on the data, और उस data की basis पे we can forecast demand, we can forecast generation, and we are able to marry demand versus generation and size the system, size the microgrid such that it is optimal. Can we also use AI for our dental grid also? Cost and reliability optimization. देखिए it is very cheap, anything which is technical is good. We have to work out the feasibility, क्या उसमें feasibility क्या होगी, उसके repercussions क्या होंगे, किस तरीके से उसका implementation होगा, उसकी एक डिटेल स्टडी एंड नॉट कि वो चार आदमी मिलकर एक अपने में जैसे आपने एनर्जी प्लान ऐसे बनाया। I think we should have all the stakeholders together. ये सारा एक डिबेटेबल कॉन्वर्सेशन है, बट देखिए हमारे जो एआई का जो हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है वो मास स्केल कंप्यूटेशन की हमें पावर मिल जाती है। हमारे जो थे वो रियल टाइम सिनेरियोज डेवलप हो जाते हैं, रियल टाइम सिनेरियोज के लिहाज से हमारे जो थे वो डिसीजंस होते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज हमको एआई के जरिए से मिल जाता है वो डेफिनेटली हम हासिल कर सकते हैं। एंड आई स्ट्रांगली फील कि हमारी लोकल जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो चाहे कुछ प्राइवेट कंपनियाँ करें हो या कुछ हमारी एकेडमिक कार्य हो, यूनिवर्सिटीज कार्य हो, वी हैव द पोटेंशियल टू डेवलप मेक इन पाकिस्तान, या पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, उनको हमें लेके आना चाहिए। एंड हु कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स बेटर देन अस, तो वो एक बहुत स्पेसिफिक है। आई थिंक इसमें अभी जो बात हो रही थी उसमें फिर शायद ये थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी कि मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो नेशनल ग्रिड है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं। जो उससे डिस्कनेक्ट हो सकती है तो कोई नहीं बनता, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एडजस्ट करता है। आज उसको नोटिस दें, 1 साल के बाद आप कहते हैं कि 1 साल के बाद उससे नहीं होगा,
वो भी प्लान कर ले, आप भी कर ले। सर कोई ऐसी बात नहीं है। ये बात ये है इसमें डिसेंट्रलाइज का मतलब जो है, जो मैं फंडामेंटली समझाऊँ, उसका मतलब यही है कि आपकी रिलायंस फिर मेन रेट पे नहीं हो, आपका जो अपना सिस्टम है उसका थोड़ा सा एलेबोरेट करें ना कि वो किस तरह आपने आप उसको ये कह सकते हैं कि नेशनल ग्रिड हमारे लिए बैकअप के तौर से काम है। नहीं, बैकअप के तौर पर काम नहीं करें। देखिए मेरी अर्ज सुनिए, बैकअप के तौर पर काम करने का मकसद ये होगा कि फिर उसको जो है वो आप ऑर्डिनरी चार्ज नहीं दे रहे हैं, वो फिर आपको मार्जिनल प्राइस पे बुक कर रहा है। हाईएस्ट प्लांट चल रहा होगा फिर वो उसको वो बुक करेगा। ये फर्क है। ये भी देखना है कि फ्यूचर के हमारे पास जो मसला रहा कैपिटल जनरेशन में जो लोग चले गए जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स लोगों को करने पड़े, क्यों? इसलिए कि दे डोंट गेट द राइट पावर क्वालिटी फ्रॉम द take any part in the country, they don't get the right power. Particularly जो ऐसे it started from textiles. कि textiles से देखा कि यार ये हमारे पास एक अच्छा alternate source मिल रहा है, सस्ती बिजली, गैस जनरेटर बेस्ड, और उससे हमें जो था assurance भी मिलती है पावर क्वालिटी की, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स नहीं होते, ये नहीं होता और ये तो मसले नहीं है, उसमें स्विच ओवर कर देते। बात क्या आप इस बात की तरह नहीं देखते जैसे आपने सीएनजी में एक आग डिसाइड किया। उसके बाद जो था यूटिलिटीज ने उनको मुकर्रर कर दिया कि यू आर ट्रीटिंग अस एज बैकअप सोर्स, राइट? नेचुरली उसमें वो जो भी उसके रिपरकशंस में वो देता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इट्स नॉट समथिंग व्हिच हम मिलकर 3 आदमी 4 आदमी डिसाइड कर सकते हैं। हैज टू बी वी शुड डिस्कस दिस मैटर्स वेरी टेक्निकल मीटिंग, नॉट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अ मिनिस्टर। अभी जो ये हुआ है मामला सारा कुछ रीडिंग्स का, नेट मीटरिंग का, वहाँ पे नेपरा का चेयरमैन मौजूद था, ऑर्गन का चेयरमैन मौजूद था, एट द मीटिंग वाज बीइंग चेयर्ड बाय द मिनिस्टर, बट दैट शुड नॉट हैपन। ये एक इंडिपेंडेंट डिस्कशन और डिस्कोर्स होना चाहिए। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो आज की बात कर रहे हैं, हमें तो थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि अब इतने बड़े बड़े जो प्लांट्स हमने लगाए हुए हैं जो नेशनल ग्रिड का हिस्सा है, उसके लिए ना हम यहाँ लोकली वो मैन्युफैक्चर कर सकते, ना हमारे पास इतने जो है इन्वेस्टर्स हैं जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, हमें बोरो करने पड़ती है, सारी लोन लेने पड़ते हैं। अगर आप रिन्यूएबल्स पे चले जाएँ, सोलर और स्मॉल स्केल विंड और बैटरी भी, ये सब भी लोकल मैन्युफैक्चर हो सकती है। The solar plant is currently 50% indigenized. Structure, cable, वो सारा कुछ तो सोलर सेल नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उस पे जाना चाहिए हमें, जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। भी हम लोकली कर सकते हैं, ठीक है जी। ये सब चीज़ लोकली हो सकती है, आज नहीं हो रही, फ्यूचर में उस पे feasibilities हैं। फ्यूचर में हम कभी स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन यहाँ नहीं बना सकते। आपकी बात सही है, हमने इनफैक्ट ऐसा काम किया, हमने काफी ट्राई किया था। ये एक क्वेश्चन है सर का, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, और इट इज अ स्टैंडर्ड टर्म जो कि पूरी दुनिया में अब डीआर को प्लान करें, और पाकिस्तान में भी मैं ये समझता हूँ सेंट्रल पावर प्लांट्स के बजाय डीआर ही प्लान करने चाहिए, सेंट्रल नहीं लाने चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट कैप्टिव पे पावर क्वालिटी के अलावा जो हमारा एक मसला रहा है वो ये कि हमने इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग नहीं की। अगर हम 400-500 रुपए की गैस दे रहे थे, फिर 800 रुपए की गैस दे रहे थे, तो जनरेटर पे इन्वेस्टमेंट करके यूनिट प्रोड्यूस करना सस्ता था, तो इकोनॉमिक डिसीजन भी था उसके अंदर, सिर्फ पावर क्वालिटी नहीं थी। तो वो भी एक बैकग्राउंड है, जस्ट सबको हैंड ओवर करना। इंटीग्रेटेड प्लानिंग में तो एडीबी का 2011 का आईईपी मौजूद है, इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लान फॉर पाकिस्तान, उसी के बेसिस पे सारी डेवलपमेंट हुई है। एनीवे जी क्योंकि काफ़ी सारी डिस्कशंस हुई हैं डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड, थोड़ा सा इससे क्योंकि दिस इज द असिस्टेंस ऑफ द एआई, तो जब हम एआई की बात करते हैं तो एआई कंट्रोल्ड सिस्टम जितने भी होते हैं वो मेनली वल्नरेबल होते हैं आपके साइबर थ्रेट्स के। और इस वक्त पाकिस्तान में अगर देखें तो जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी इतना मैच्योर नहीं है, वो एक उसकी जो इवॉल्वमेंट हो रही है, तो उसमें अगर मैं थोड़ी देर की सोचता हूँ कि अगर कोई सा माल फंक्शन से फॉर एग्जांपल, तो हाउ विल हैंडल दिस, अगर ऐसा होता है तो फिर हम क्या किस तरीके से करेंगे, या हम उसका इंतजार करेंगे कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले वो इनफ मैच्योर हो एंड मेक श्योर देन वी विल गो। सो दिस इज अच्छा देखें, एआई जो है वो
یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں پہ آپ کسی کنٹری اسپیسیفک نہیں رہتے، جہاں پہ جو بیس ہے، جس کو جو مشینری کہتے ہیں وہ ہے ڈیٹا. اور آج کی ڈیٹ میں ڈیٹا کو سیو کرنے کے، پروٹیکٹ کرنے کے اور گارڈ کرنے کے ویریس میتھڈس بھی ہیں اور اس پہ اسٹینڈرڈس بھی ہیں. ایون ISO نے بھی 27001 کا ایک اسٹینڈرڈ انفارمیشن سیکیورٹی پہ رکھا ہے. سو the main vulnerability is with data security. اس کے لیے کچھ اسٹینڈرڈس ہیں، اور ان اسٹینڈرڈس پہ اگر آپ وہ پورا اس کو کمپلائی کرتے ہیں سو دیر از نیئر ٹو زیرو. اوبیسلی وہ تو US میں بھی ہوتا ہے، ابھی بھی بڑی بڑی اکانومیز بڑی بڑی ٹیکنالوجیز کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. بٹ وی آل آر یوزنگ AI. ہم جتنے ہم انٹرنیٹ پہ کوئی بھی اپلیکیشن یوز کریں وہاں تو سب ہے. پاور سسٹم پہ اچھا جی پاور سسٹم پہ بھی جب اس کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں تو پاور سسٹم پہ رسک کیا ہے کہ جو AI یا ڈیجیٹائزیشن جہاں پہ پاور سسٹم کے اندر ہے وہ میل فنکشن اگر ہوگا تو وہ زیادہ سے کسی کمپوننٹ کا ہوگا تو وہاں ہیکنگ تو انفارمیشن سیکورٹی سے ISO اسٹینڈرڈ سے کنٹرول ہو سکتی ہے. وی آر ڈوئنگ دیٹ. ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہے. لیکن ٹھیک ہے، اگر کسی ہارڈ ویئر کے میل فنکشن سے ہو رہا ہے تو دین یو ہیو ریڈنڈنسی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، بیک اپس ہوتے ہیں آپ کے پاس. اور چونکہ یہ اکوپمنٹس یہ ہارڈ ویئر بڑی مطلب لیس ایکسپینسو ہوتے ہیں، یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. سو اس میں ایک کے بعد ایک سینسرز ہوتے ہیں تو آئی تھنک اٹ از کوائٹ اسٹیبل رائٹ ناؤ. اچھا انڈیجنائزیشن کی جب بات چل رہی تھی تو اس میں سولر پینل کی بھی بات آئی کہ ہم اس کو کیسے بنا سکتے ہیں. بالکل بنانا چاہیے. اینڈ آئی فارملی بلیو دیٹ. ہم نے 3-4 سال سے کوشش کر رہے ہیں جی ڈیولپمنٹ بورڈ کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر کے بنائے. لیکن ہمارے یہاں پہ بھی جو پرابلم ہے نا وہ وہی ہے، وہ میں بتا رہا ہوں. مین پرابلم کیا ہے؟ مین پرابلم وہی ہے جو ابھی ہم 1 گھنٹے سے ڈسکس کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہماری انرجی کاسٹ اتنی ہائی ہے کہ we will never be able to beat until we have 30-35% on import tariff. آپ بنا نہیں سکتے جب تک کہ آپ سولر سیل یہاں آپ جب تک آپ جو ہے وہ ہیوی ٹیرف سپلائی نہیں کرتے یہ فیزیبلٹی نہیں کرتے. ڈسکشن نہیں کریں. اچھا اب انڈیجنائزیشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سر انڈیجنائزیشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں خالد صاحب کی بات سے آگے چلوں گا کہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ ہم نے AI بیسڈ ایک پلیٹ فارم ڈیولپ کیا ہے. وہ ہم بیسکلی ٹیلی کام نیٹ ورک کے لیے یوز کر رہے تھے. میں آپ کو ایگزامپل دوں گا. نیم آف دا پلیٹ فارم از Spark. سو یہ ہم ٹیلی کام نیٹ ورک کے لیے یوز کرتے تھے پاکستان میں. اور اس کو اٹ واز ڈوئنگ سم انالیسس کے بیس پر دیر واز ڈیسیژن میکنگ، فورکاسٹنگ اینڈ آل دوز تھنگس. ہم نے 1.5 سال پہلے وہ ٹیسٹ کیا باہر جا کے مڈل ایسٹ ساؤتھ افریقہ میں. ود ان 12 months we are able to expand our platform in 11 countries. اور وہ جو بھی دیکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یار وہ سرپرائز ہوتا ہے وہ یو ڈوئنگ دس ان پاکستان. اور ہم جن سے کمپیٹ کر رہے ہیں وہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، وہ بڑی بڑی ٹیک اسرائیلی کمپنیز ہیں جن سے آج ہم کمپیٹ کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ جو انڈیجنائزیشن پہ جو بات ہو رہی تھی اس میں ہم ان کمپوننٹ کی 2 سیکنڈ کے لیے بات کر لیتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے تھے اور وہ ہم نے بند کر دیے. جو ٹرانسمیشن لائن کا آپ کا بیڑا غرق اسی لیے ہوا ہے کہ ہم یہاں ٹاور بنا رہے تھے، اب نہیں بنا رہے. ہم ایک انسولیٹر کی کمپنی تھی وہ نہیں بند ہے، اس کی بجائے ہم نے ٹائلیں بنانی شروع کر دی ہیں یا واٹ ایور. اب بات یہ ہے کہ اسی کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں، سچویشن کو دیکھتے ہیں. میں 55 ایئر سے ٹرانسمیشن لائن کانٹریکٹر ہوں اور 47 ایئر سے سعودی عربیہ میں کام کر رہا ہوں. اور یہاں پہ بھی ہمارا ہیڈ آفس یوز ٹو بی اے اسٹیٹ آرگنائزیشن، ناؤ پرائیویٹائزڈ. 10 روپے کا شیئر گورنمنٹ نے ہمارا 1420 روپے کا بیچا. 56 دفعہ پہلے ہم سے اکویٹی واپس لی اور پھر 1420 روپے کا بیچا جو اب 8000 روپے کا ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں 3 دفعہ سعودی گورنمنٹ نے بیسٹ ٹرانسمیشن لائن کانٹریکٹر کا ایوارڈ دیا اور ہم نے ان کو سکھایا کہ آپ اپنی انڈسٹری لگائیں. انہوں نے 5 فیکٹریاں اپنی ٹاورز کی لگائیں. 100% وہ انسولیٹر بنا رہے ہیں، کنڈکٹر بنا رہے ہیں. ایک آئٹم وہ انسولیٹر وہ صرف امپورٹ کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کیوں ہم بھیک مانگتے پھرتے ہیں انہی چیزوں کی. خود بناتے تھے پہلے، وہ بھی ہم نکل گئے. اس کے بعد یہاں پہ ہم ٹاپ کانٹریکٹر ہیں سعودی عربیہ میں. 80% آف آور ورک، میرا جو $100 ملین کی ٹرن اوور ہے سعودی عربیہ میں، اور
یہاں پہ میری جو کمپنی کا پورشن ہے وہ یہاں پہ کام ڈھونڈتا پھرتا ہے. یعنی کمال ہے ویسے. یعنی یہ کیا ہے؟ اس کے لیے کہ ہم اپنی قدر نہیں کرتے. ہمارے دوسرے لوگ ہماری قدر کرتے ہیں, ہم اپنی قدر نہیں کرتے. ہم اپنی انڈسٹری کو ہم نے خود پٹھا بٹھایا ہے. فرینکلی اسپیکنگ, ہم نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ جو تھوڑا سا گر رہا تھا اس کو تھوڑا سا سنبھال لیتے, اس کو کہتے بھائی اب پیکو تھی آپ بنا رہی تھی انڈسٹری, آپ نے دیکھا ٹاور بنا رہے تھے وہ 220 کے کا تک تو بڑے قابل طریقے سے بناتے. آپ کدھر گئے؟ ختم ہو گئے, بند ہو گئے. ایک ایمکو انسولیٹر تھی, وہ آج کا پتہ نہیں کیا 11 کے انسولیٹر بنا لیے, باقی سارا کچھ بند ہو گیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں, اچھا پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جب انڈسٹری بند ہوئی تو آپ کو بجلی کی آپ کے پاس کھپت جو ہے کم ہوگی, تو آپ نے اپنے ہی دروازے ادھر سے بند کیا, کبھی ادھر سے بند کیا. تو یہ سارا جو ہمارا مسئلہ بن رہا ہے, ہمیں انڈسٹری کو اوپر لانا پڑے گا. بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ IEEE کا میں ہیڈ کوارٹر سے آیا ہوں, تو یہ میں نے دیکھا کہ بڑا اچھا لوگ یہ کراچی کام کر رہے ہیں. لیکن ان کو ایک کام کرنے کی اور ضرورت ہے کہ انڈسٹری اور یونیورسٹی کے ساتھ مل کے جو انٹرنیشن ہے اس کے اوپر اور زیادہ کام ہونا چاہیے. جو چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں ان کو واپس لانا چاہیے. بہت شکریہ. کمنٹ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد وی ول سی کہ ہمارے آڈینس کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ول اسٹارٹ وتھ پرویش صاحب. آفٹر ویری ہاٹ ڈسکشن پرویش صاحب. میں تو سمپل بلیو کرتا ہوں کہ اینڈ ٹو اینڈ سولوشن جب تک نہیں ہوگا ہم کسی نہ کسی طرح سفر کرتے ہیں. تو اب آپ نے دیکھ ہی لیا, ہمارے دوست چلے گئے ہیں, وہ 18 روپے کا اس کو IPP اسٹرکچر میں دے رہے ہیں, اور ادھر سے ہم وہ سارے کانٹریکٹس رینیگوشیٹ کرتے پھر رہے ہیں. حالانکہ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب وہ رینیگوشیشن پہ میں تو بالکل خلاف نہیں, میرا اپنا ایک پرسنل ویو ہے. بات تو بڑی ایک مزاحی ایسی ہے, لیکن میں کوٹ کر دیتا ہوں. یہ بات ہے 78-79 کی. میں گیا گاؤں اپنے, تو میں نے دیکھا گھر میں کوئی چھوٹی سی صورتحال ذرا عجیب سی ہے. اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارے پاس گاڑی ہوتی تھی, نہ کچھ بس پہ جاتے تھے دھکے کھاتے ہوئے, لیکن عید گھر پہ کرتے تھے. اب ہر چیز ہے تو گھر بھی نہیں جاتے. تو جیسے عید کی نماز پڑھ کے آئے تو دادا نے سب کو بلا لیا. کہتے مقبول کو بلاؤ, یہ میرے چچا تھے. کہتے یہ سنا ہے تم نے کہا ہے کہ میں نے شادی اپنی پسند کی کرنی ہے. میں نے کہا جی بالکل میں نے ڈسائڈ کر لی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر اپنا بولا بستری اٹھاؤ اور جاؤ. اس نے کہا کیوں؟ ارے میں نے زبان دی ہوئی ہے جس کے ساتھ تمہارے میں نے بات طے کی ہے. تو یہ PPA EPA ہے, ہم نے گورنمنٹ کی زبان دی ہوئی ہے. جو آج ہم اس کو کہیں گے کیا ہمارا کنڈینچر رہ جائے. میں تو بڑی سادہ سی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں وشفل تھنکنگ ہونا اپنی جگہ ہے, لیکن اور کسی بات ورڈ کے پیچھے بھاگ پڑنا, یہ میں سمجھتا ہوں ہم جو پہلے غلطیاں کر رہے ہیں اس کی ایک اور غلطی دہرانے جا رہے ہیں. بالکل آپ ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو پلاننگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ کریں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں فیزیبل ہے, بالکل فیزیبل ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا. کوئی ہم دنیا کے کسی ایسے کونے میں تو نہیں رہتے کہ جو ڈسپلن کی گولی امریکہ میں چلتی ہے وہ کیا یہاں نہیں چلتی. ڈیفینیٹلی اس کا وہی ہے. بات یہ ہے کہ پورے جو ریگولیٹری فریم ورک ہے, جو لا آف دا لینڈ ہے, اس کو ہم بدلنا دیکھیں. جہاں اسپیس نکلتی ہے بالکل کریں, تاکہ ان کو بھی تماشا وہ لیشز پڑے ان کے, تاکہ وہ سمجھے کہ یہ پرانے زمانے کے یہ جو ہے گلے ہوئے ٹماٹر ہم نہیں بیچ سکتے, اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے. تو اس کے لیے ضروری ہے, اور اسپیشلی اس طرح کی انوویٹو آئیڈیا تو دیکھیں یہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہی کرتا ہے. آپ ایک کوئی کریں نا جو ہے بالکل اس کو آئسولیٹ کریں. اب آپ کے پاس ریسورس ہے, اچھا جو ہے پے ماسٹر ہے, وہ انوویٹو لائف بھی کرتا ہے, تو آپ وہ کریں. یہ وہ ریپلیکیٹ ہو جائے گا. کون اس کو روک سکتا ہے؟ اتحاد روک سکتا ہے یا MDHTCC روک سکتا ہے. Nobody can stop. اب ثاقب صاحب کا جائیں گے اور آخر میں پرویز صاحب سے لاسٹ کمنٹ لیں گے. ثاقب صاحب 1 منٹ آپ. جی شیور. اچھا تو جو میں نے آج شروع میں کی تھی, آئی وڈ لائک ٹو ریپیٹ کہ بھی جو رینیویبلٹی ڈرائیو ہے تو اس پہ ایک طریقہ تو یہ ہے اس سے فائٹ کریں, دوسرا جو ہے وہ یہ کہ اس کو امبریس کریں اور انٹیگریٹ کریں.
embrace करने और integrate की जब बात करता हूँ तो उसका मतलब ये कि renewable mostly अभी जो हम जिस condition में हैं वो decentralized लगा हुआ है और decentralized जो एक लहर चल पड़ी है और decentralized हो रहा है because of the cost, ये अब inevitable है, इसको हम रोक सकते नहीं। अभी इतिहास साहब ने बात कही कि हमने ज़बान दी है, बिल्कुल ठीक बात है, ज़बान दी है, लेकिन हम करें क्या? ज़बान दे के उसको ज़बरदस्ती यूज़ करवाएं? अगर गवर्नमेंट ये चाहेगी कि ज़बरदस्ती को यूज़ हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं, इसलिए कि हर इंडस्ट्री, हर कस्टमर, हर कंज्यूमर के पास अब ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं मिसकोट हो गया, मिसकोट ना करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसकी बात मेरी बात को समझे, मेरी बात को समझे, ठीक है? लास्ट में अगर जो है ये इतना पड़ा हुआ है और ये कंसंट्रेट सोल्यूशन है, तो आप इसको इतना डालें ना कि वो उसकी सर्टेन पीएच वैल्यू रह जाए ना। आप कहेंगे मैं इसको बिल्कुल इसको न्यूट्रल इतना कर दूं कि ये सारा निकल जाए अच्छा नहीं, मुझे कंक्लूड करने दें। मैं ऐसा नहीं कह रहा, जो एग्रीमेंट्स हैं उनको ऑनर करें। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ। मैं जी मुझे कंक्लूड करने दें। मुझे मेरा कंक्लूजन सिर्फ एक रह गया। मेरा फ्रेस करने और इंटीग्रेट करने का मतलब ये था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम वादा खिलाफी करें या हम ग्रिड को साइड पर रखते हैं, और ये मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। दुनिया भर में क्या हो रहा है कि डिफरेंट माइक्रो ग्रिड्स बने हुए हैं और माइक्रो ग्रिड्स को इंटीग्रेट करके इवेंचुअली ग्रिड में लेके जाया जाता है। सो इट्स, अगर आप मैक्रो देखें, मैक्रो लेवल देखें, तो उसमें ग्रिड हैज अ रोल एंड इट विल कंटिन्यू टू हैव अ रोल। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बिल्कुल ही जो है वो सोल्यूशन नहीं है। देखिए जब आप पहले तो डिस्कशन का जो था, जो हमारे वो रिवर्स था ना, वो तो कह रहे थे कि मुझे आइसोलेट होना है, आपने उसका अदर वे एस्पेक्ट दिया, लेकिन मैंने जो अर्ज की थी कि फिर जो है जो प्लांट जो इस वक्त चल रहा होगा उसकी कॉस्ट भी आपको होगी ना। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी मैं जो एक एवरेज टैरिफ है वो मैं कर रहा हूँ, आपको मार्जिनल प्राइस पर पे करनी पड़ेगी, पर सिंपल सी बात है। और उसके अलावा जो वो बकर कह रहे थे कि आपको सर्विस है तो वो भी पे करके ये डिस्कशन से रिलेटेड थोड़ा सा मैं पूरे अपना पॉइंट ऐड करना टाइम नहीं है सर, हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, बाद में बात करें। दो एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा कि ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, एक फर्टिलाइजर प्लांट पाकिस्तान में ऑपरेट हो रहे हैं और दूसरा सीमेंट प्लांट ऑपरेट हो रहे हैं। दोनों की पावर कंजम्पशन जो होती है वो 24 मेगावाट, 30 मेगावाट इस तरह की होती है। कोई भी पाकिस्तान में जो फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं वो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। ऑल ऑफ दीज आर ऑपरेटिंग ऑन कैपेसिटिव मोड, अपनी पावर बनाते हैं, अपनी जनरेशन करते हैं और परमिट करते हैं। एंड नन ऑफ दीज पावर प्लांट हैज अ सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड टू सेव एनर्जी, टू सेव कॉस्ट। दूसरा इसी तरह का जो है सीमेंट प्लांट की एग्जाम्पल ले लें तो सीमेंट प्लांट फर्टिलाइजर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है और उनकी पावर कंजम्पशन भी कोई अगर 24 मेगावाट है तो उन्होंने 12 मेगावाट, 14 मेगावाट, 20 मेगावाट हर प्लांट में सोलर सिस्टम लगाया हुआ और वो भी ऑपरेट हो रहे हैं। अब अगर मैं देखूं जो सेंट्रलाइज्ड बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दे शुड बी क्वाइट हैप्पी विद द फर्टिलाइजर प्लांट, नाम उनसे लेते हैं ना देते हैं। लेकिन जब वो सीमेंट प्लांट्स को देखते हैं तो वो दिन में तो कुछ लेते नहीं हैं या लेते हैं तो 50% लेते हैं। उनके जो प्लांट लगे हुए हैं वो तो 100% देने के लिए रात को वो फिर वो 24 मेगावाट, 30 मेगावाट जो है वो उनको पावर दे रहे होते हैं। तो ये डायलेमा है जो कि हमारे जो जनरेशन का और रेगुलेटर का अपनी जगह है।
और यही रेगुलेटर वो है जो कि उनको तो कमेंट पे दोबारा बहस शुरू हो सकती है। ये लास्ट में मैंने आपको दिलवाया खिलाफ नहीं बात करेंगे। गुड पॉइंट। अच्छा, मैं इसको क्लोज करना चाहूँगा बहुत मुख्तसर बात करके। देखिए, बात ये है, मेरा तजुर्बा है तो ये है कि जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही होती है आप उनका रास्ता नहीं रोक सकते, उन्होंने नहीं आना। हमें ऐसे तरीकों ये देखना होगा कि हम क्या उनका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। मुझे याद आता है कि आज से 44 साल पहले मैं अमेरिका से जब आया था MS करके, मैंने एक पेपर पढ़ा माइक्रो प्रोसेसर एप्लीकेशन से इंडस्ट्री 44 ईयर्स। तो उसमें मेरे पास बड़े सारे सवाल आते हैं, यार कैसी बातें करें, हमारे वर्कर्स का क्या हो, हमारी पॉपुलेशन का क्या होगा। And my answer was that your population, it will not affect your population. आपने अपनी पॉपुलेशन की कैपेबिलिटी को एनहेंस करना पड़ेगा। वो ये बात है कि हमें रास्ता तलाश करना पड़ेगा कि हम जो आने वाली टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें कि AI की बात हुई, AI के जरिए से अपने पावर सिस्टम को कैसे कंट्रोल करे होंगे, रिन्यूएबल्स को कैसे ऐड करे होंगे, बेस्ट कम्बिनेशन क्या बनेगा। हम नेशनल ग्रिड को डू नहीं कर सकते तो क्या हमारे लिए बेहतरीन होगा। यही मैंने कहा कि इसके ऊपर एक अच्छी एक डिबेट होनी चाहिए, किसी उसमें जो कि प्रोफेशनल्स करें, उसमें किसी मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, किसी कोर कमांडर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल्स हैव टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। और उसमें अपने साथ साथ जो बात आपने एक अलग से सवाल किया था मेक इन पाकिस्तान के लिहाज से, वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड वी शुड वर्क विद दैट। थैंक यू। लेट्स हैव अ वोट अगेन। लास्ट थिंग, हमने ये डिबेट सुनी, इट वाज क्वाइट एंथुसियास्टिक और एनर्जेटिक और इट्स स्पेशल था। तो क्वेश्चन इज there, is a decentralized power system feasible in Pakistan through mini microgrids and renewables with the assistance of AI? Those who say yes, please raise their hands. Feasible है, feasible है। अच्छा, जो समझते नहीं है, वो हमारे वोट तकरीबन नहीं रहे। Almost. They have not been able to put any pressure on the audience. So thank you so much.